Good afternoon, everyone. So good afternoon to one and all present here, and welcome to today's webinar. My name is Dr. Neelam Tyagi, and I'll be your moderator. So I'm pleased to introduce today's speaker, Mr. Siddharth Rathore. Welcome, Mr. Rathore. Thank you very much, ma'am. The topic for today's discussion is how to use Google Classroom and Google Meet. To begin with, I would request Professor Dr. Raman Mittal, sir, PIC Campus Law Center, to kindly share a few words. Over to you, sir. Okay, thank you very much, Neelamji. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so it's my privilege to welcome Mr. Siddharth Rathore. Thank you very much, sir, for coming to this forum and agreeing to interact with all our colleagues. And it is my privilege to welcome all our colleagues also. This is the beginning of this session for us, the teaching session. And this time, as per the instructions of the university, we will be adopting the uniform format of Google Classroom and Meet for conducting our online classes. So, as we all understand, there are technical glitches that we encounter in these formats, and there are certain other behavioral issues on part of the students, which we always encounter and which we need to control. So, these behavioral issues and the technical aspects. We would request you to kindly highlight both these aspects in your interaction with the faculty members today. Sure, Thank sir. you so much, Sure, sir. So, and I Thank welcome you so you. much. Thank you so much, sir. So our speaker for today is Mr. Siddharth Rathore. Currently, he is working as an assistant professor at Gargi College, University of Delhi. Apart from teaching, he has a keen interest in data science, artificial intelligence, and blockchain technology. Mr. Rathore is regularly delivering guest lectures on topical economic issues to senior bureaucrats and defense service officers at IIPA. He has a keen interest in the dissemination of his knowledge and experience through his YouTube channel, The Pink Professor. With this, I welcome Mr. Rathore. So before we get started, I request all of you to please mute yourself. We have reserved the last 30 minutes for dedicated question and answer session and for taking up your queries. If you have any questions during the presentation, please write them in the chat box. So without any further delay, let us get started. Mr. Rathore, over to you. sure. Thank you, ma'am. So, there's one request before I begin. If all of you could turn off your videos, because what happens is the bandwidth gets reduced when everyone is using the video version. So we have a limited amount of bandwidth, and if that gets reduced, so my clarity and my video will not be that clear. So, given the diverse set of people here, what I would like to ask that would you like me to orient the entire audience in English, or would you like it bilingual, Hindi and English? Both works for me. Sir, English will be perfect. Okay. So what I'll do is I rather prefer a bit of bilingual things, because of the fact that it is easy to understand for as in terms of videos, and then this videos is also watched by a lot of people from outside the Delhi University. So I'll try to be bilingual a little. So please accommodate these aspects. But having said that, I'll explain everything in English as well as in Hindi. Now, I'll start with presenting my screen first. So, is my screen visible to all of you? Yes, sir, it is possible. Okay. So let's first start with certain basics. So I've distributed a PDF to all of you. Let's the issues that I'll be covering will be from this PDF only. So the first issue that we have on our hand is that of G Suite, and how to utilize basically G Suite for online teaching. In this G Suite, we'll talk about Google Meet, we will talk about Google Classroom, we'll also talk about Google Calendar, because only when you integrate all three of them, तो जब तक आप इन तीनों चीज़ों को इंटीग्रेट नहीं करोगे, तब तक जो पूरा पूरा प्रोसेस है वो स्ट्रीमलाइन नहीं होगा. And another issue which a lot of teachers face is that how to basically take attendance and how to manage the internals on the basis of the online platforms that we have. So in this entire PPT, I'll
entire PPT, I'll also share certain aspects of my Excel sheet, and one of the Excel sheets was distributed on Delhi University portal as well. I'll show you how to utilize that Excel sheet for attendance purposes. Then the issues that we'll go through. So we will talk about the Google sign-in procedure and why is it so important. Why do you need to secure yourself in terms of maintaining a separate professional and a personal account. Then we will also talk about configuring Google Calendars, because all of your classes can be configured through Google Calendar. In fact, a lot of teachers have asked me that unwarranted students always enter their classes. This is a mechanism through which you can only allow students which are present in your class, which are actually from your class, only they'll be able to attend the class. If anyone else wants to attend that class, then that person needs a separate acceptance from you. So we'll talk about that. We'll talk about the video and audio configurations of Google Meet. And then in the next part, we'll talk about the attendance issue. So in the attendance, I'll ask you to basically install certain plugins from Google. There's something called Chrome Web Store. So how do you install these plugins? Where do all these plugins come from? How to utilize them? There's something called Grid View. If you can see on my screen, I can see all of you. So this is basically because I have installed a plugin by the name of Grid View. And if you can also see, I can see all of your attendance. So I can see who all are there in the present class. In fact, not only that, I'll go a little bit technical on this side. I'll show you how you can even see that how many of you attended this session for how much time. So based on that, so at times what students at times also do is they come for a class for 5 minutes, then in between they can again join for 2 minutes, then in the end they can again join for 2 minutes. So you can keep a track of that aspect as well. So ये सारे issues भी we will cover. So हम attendance के बारे में भी issue cover करेंगे, हम बाकी plugins के बारे में भी करेंगे, and then we will talk about WebPaint. There's a very interesting application plugin called WebPaint, especially online teaching mein, when you are discussing code judgments. So in those code judgments, you can directly write on the screen, so or annotate on the screen with your mouse. So I'll show you how to do that, as well as translate. Suppose like my research area is basically very concurrent to what your specialization is. So my research area is law and economics, and basically application of artificial intelligence and blockchain in law and economics. So I need to visit a lot of websites which are not in English. So suppose I go to China's Supreme Court's website or some other text. So I want to translate the entire website into English. If that plugin is not installed there, I can use the Google plugin to translate the entire Mandarin language into English language. Then finally we will see how to integrate Google Classroom, because at the end of the day you want to share assignments, you want to share tests, you want to manage the internals. So that all can be done through Google Classroom. So this is one part of our discussion today. Then automation of internal assessment through Excel sheets. I'll discuss my own Excel sheet and how I automate the entire thing. In this part, I will go a little bit of, I'll introduce a little bit of technicality on how to convert a CSV file into a normal readable Excel file, and then how to basically use the formulas that are populated in my Excel sheet to calculate the attendance as well as your internals. Finally, in this session, we'll talk about the terms and conditions, the privacy issues. These are issues which are not perhaps talked about, but since all of you are from the legal fraternity, I'm sure that you would have read the Data Protection Act, the Data Protection Bill, as well as the Sri Krishna Committee report. So we will talk a little bit about that, some issues regarding the fiduciary responsibility and how to basically safeguard yourself from prying eyes, not just from the institution, but also from in general, how to basically separate your personal life from your private life. And in this, I'll also talk about there are certain issues that an institution should take to point. For example, all of you have received the institutional ID, but the institutional ID manager is basically called the admin console. So admin console has a lot of rights, and if someone puts a little bit of effort in it, the admin console can also access all of your mails. So I'll show that even without violation of IT Act, you can actually review the mails of everyone that shares the same institutional ID. So we'll talk about all these issues today. Let's start from
the first aspect, which is setting up of an institutional account. So I hope all of you have your institutional ID. For me, it's siddharth.rathore@gargi.du.ac.in. So what I want you to do is you can reach this particular window. आपको कुछ नहीं करना, आप माई अकाउंट्स google.com पे जाएंगे या गूगल पे सिंपल आपको साइन इन करना है. तो जब आप साइन इन करेंगे आपको आपके पास एक टेम्प्रेरी पासवर्ड दिया गया होगा. अगर आपने अभी तक टेम्प्रेरी पासवर्ड चेंज नहीं किया, इफ़ यू हैवंट चेंज द टेम्प्रेरी पासवर्ड, the moment that you log in, you will have an account. Your picture will not be there, but this is somehow the account that you will get. This will be your basic Google account, and you would have your institutional ID mentioned here. Just a second. If you can see, my institutional ID is mentioned here, siddharth.rathore@gargi.du.ac.in. So this will basically show you that this is my institutional ID. As compared to this, if you see my personal ID, this is my personal ID. So if you can see, this is my personal ID. There's another account that I have. This is my professional ID. This is my father's account. So you need to differentiate between your personal account and your private account. अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताऊँगा जो बहुत अंडरस्टेटेड हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम देर आर वेरी की इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर यू टू डिफरेंशिएट कि आप पर्सनल अकाउंट में हैं कि प्राइवेट अकाउंट में हैं. तो सबसे पहले आपको जो करना है वो आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाइए, एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर आपकी डिस्प्ले पिक्चर आती है. तो आप अपनी डिस्प्ले पिक्चर को चेंज कीजिए, और वो जो डिस्प्ले पिक्चर होनी चाहिए वो आपकी एक सेपरेट डिस्प्ले पिक्चर होनी चाहिए जो आपके पर्सनल अकाउंट से डिफरेंट है. सो जैसे ही मैं ये पिक्चर देखता हूँ तो मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि मैं अपने पर्सनल अकाउंट में हूँ. इफ़ यू कैन सी हेयर, यहाँ पर मेरा ये प्रोफेशनल पिक्चर लगी हुई है. यहाँ पर इवन जो मैंने लॉगिन किया हुआ अपने क्रोम में वो भी मैंने अपने प्रोफेशनल अकाउंट से किया हुआ है. यहाँ पर ऑफिशियल मैंने लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने उसको लिखा हुआ है कि मेरा गार्गी का अकाउंट है. नाउ इसका मैं इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा एम्फेसिस इसलिए देता हूँ क्योंकि जब भी आप यहाँ पर, अब जैसे ही मैं ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं क्रोम का ब्राउज़र यूज़ कर रहा हूँ, तो जब भी मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो जितना भी लॉगिन जो भी मैं एक्सेस कर रहा हूँ ये सब कुछ मेरे कॉलेज के आईडी से चल रहा है. एंड अगेन if you read the terms and conditions of the institutional ID, I'll show you that all these terms and conditions says that your employer or the Google admin will have access to information. Let me read it out to you. This is the privacy policy. See, this is I took a screenshot of the privacy policy when I downloaded this. So welcome to the new account. Your account is compatible with many Google services, but see the second paragraph. When you use the Google services, your domain administrator will have access to your account account information, including data you store in this account with Google services. So इसके अंदर आपका हिस्ट्री आ सकता है. when you say Google services, anything regarding data regarding Google services, तो आपने एक बहुत ब्रॉड फील्ड क्रिएट कर दी. इसमें मेरी हिस्ट्री हो सकती है, इसमें मेरे मेल्स हो सकते हैं, इसमें मेरा ड्राइव हो सकता है, इसमें मेरी पिक्चर्स हो सकती हैं. तो ये सारा एक्सेस आपका यहाँ पर हो सकता है. तो इसीलिए यहाँ पर आपको डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत है कि ये मेरा पर्सनल अकाउंट है या प्राइवेट अकाउंट है. इनफैक्ट यहाँ पर क्लियरली मेंशन्ड है, योर यूज़र नेम एंड प्रोफाइल पिक्चर कैन हेल्प यू इंश्योर दैट यू आर यूजिंग द इंटेंडेड अकाउंट. इसीलिए मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है कि आप जब भी लॉगिन करें तो आप सबसे पहले देखें कि मैं कौन से अकाउंट से लॉगिन करना चाह रहा हूँ, एंड आप अपने पर्सनल अकाउंट से ही लॉगिन कीजिए जब आप अपना पर्सनल काम कर रहे हैं. जब आप अपना प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर टेकिंग योर क्लासेस, तो आप ये बस देख लीजिए कि मैं अपने प्रोफेशनल अकाउंट में हूँ, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर क्लासेस. सो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग ऑन द प्रोफेशनल फ्रंट इज बीइंग रिकॉर्डेड ऑन योर प्रोफेशनल क्रोम ब्राउजर. देन इसके बाद तो सबसे पहले आप अपना नाम जो है अपना अमेंड कर लीजिए अगर कोई नाम में कोई चेंजेस हैं. पासवर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड पासवर्ड आई विल आस्क यू अगेन एंड अगेन. पासवर्ड जो होना चाहिए आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. इट शुड हैव अल्फा न्यूमेरिक्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटलाइज लेटर्स, न्यूमेरिक्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स. ये चारों चीज़ें आपके पासवर्ड में होनी चाहिए, तभी आपका पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है. एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम पासवर्ड स्ट्रॉन्ग सिर्फ एक वन लेयर ऑफ प्रोटेक्शन है, उसके अलावा आपको बहुत लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन भी चाहिए होती हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं जब यूज़ करता हूँ तो आई एम नॉट ओनली यूजिंग दिस, मैं 2-वे फैक्टर ऑथराइजेशन यूज़ करता हूँ. अगर मैं किसी और कंप्यूटर से अपने प्रोफेशनल आईडी में लॉगिन करूँगा तो सबसे पहले मेरे मोबाइल पे OTP आएगा. एंड नॉट ओनली दैट, आई ऑल्सो यूज़ अ VPN.
मैं VPN से अपने इंटरनेट को मास्क भी करता हूँ. सो अगर अगर अभी मैं VPN नहीं यूज़ कर रहा हूँ, बट आई कैन वेरी वेल शो यू. अगर कोई मेरा IP एड्रेस देखेगा तो आई मीन आई कैन शो कि मैं इस वक्त एम्स्टर्डम में बैठा हूँ या इस वक्त मैं US में बैठा हूँ. तो मैंने अपनी ट्रैकिंग भी पूरी बंद करी हुई है. हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि ये जो है इतनी सिक्योरिटी लेने की क्या ज़रूरत है, बट इफ़ यू सी द काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट वी आर लिविंग इन, एंड आई एम पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड, एंड आई सी ऑल ऑफ दिस हैपनिंग. In fact, I was reading Thomas Muller's report on Trump's election. तो उन्होंने यही बोला था, there are only two kinds of websites in this world, और two kinds of organizations. एक जो हैक हो चुकी हैं और एक जो हैक होने वाली हैं, और तीसरी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं. तो इसीलिए मैं अब सेफ्टी के तौर पे इतने सारे स्टेप्स लेता हूँ. एटलीस्ट कुछ सेफ्टीज़ जो हैं आपको लेनी चाहिए. वो एक तो आपका पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए, दूसरा आप 2 फैक्टर ऑथराइजेशन करिए. देन आपने जब अपना अकाउंट सेटअप कर लिया, उसके बाद आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं अकाउंट के बारे में कि क्या सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं. कोई और सिक्योरिटी इशू अगर आप देखना चाहते हैं तो सिक्योरिटी इश्यूज़ आपको यहाँ पर भी मिल जाएंगे. तो ये बेसिक चीज़ें हैं सिक्योरिटी के रिगार्डिंग. बट नाउ लेट्स मूव ऑन फ्रॉम सिक्योरिटी टू एक्चुअली हाउ टू कंडक्ट क्लासेस एंड हाउ टू यूटिलाइज G Suite. उसके लिए सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा कैलेंडर, बिकॉज कैलेंडर एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट रिसोर्स है हमारे पास. अब कैलेंडर से पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? कैलेंडर से आप अपने पूरे सेमेस्टर की क्लासेस, यू कैन प्लान योर एंटायर सेमेस्टर अहेड ऑफ योर सेल्फ, एंड उसके बाद यू कैन अलाउ ओनली सेलेक्टेड स्टूडेंट्स टू एंटर एवरी पर्टिकुलर क्लास. उसके अलावा कोई और स्टूडेंट वो कोई क्लास अटेंड नहीं कर सकता. लेट मी शो यू हाउ टू वर्क अराउंड विद दिस कैलेंडर. जैसे ये आप मेरा कैलेंडर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये मेरी क्लासेस, ये मेरी पूरे कैलेंडर में क्लासेस हैं. ये मेरा एक सेशन अभी चल रहा है गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ में इस वक्त. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, ये देखिए ये मेरा पूरा मंथली कैलेंडर यहाँ पर खुल के आ गया है. अब आई वांट टू शो यू कि आप कैलेंडर से आप क्लासेस कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. नाउ फॉर दैट लेट्स से कि मुझे फर्स्ट को, आपको कहीं पर भी आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप क्लास कर सकते हैं. नहीं तो यहाँ पर एक प्लस का साइन है. और कैलेंडर तक जाना कैसे है, लेट मी शो यू दैट एज वेल. आप अपने अकाउंट में जब जाएंगे तो यहाँ पर ये जो 9 पिन्स हैं, यहाँ 9 पिन्स को क्लिक करेंगे तो आपके पास कैलेंडर का ऑप्शन आ जाएगा. ये कैलेंडर का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो आपके पास कैलेंडर खुल जाएगा. अब ये से यहाँ पर मेरे पास कैलेंडर खुला हुआ है. अब मंडे को मेरी 8:45 पे क्लास है टू 10:30 मेरी क्लास है. मेरी 8:45 टू 10:30 ट्यूसडे को भी क्लास है. और ये मेरी बाकी क्लासेस है इन द इंटायर वीक. नाउ सपोज I'll स्टार्ट एकदम फ्रेश स्टार्ट करते हैं, या पहले हम ये क्लास देखते हैं कि ये कैसे एडिट करना है. ये देखिए इसके अंदर आप क्लास में मैं I'll show you how to create a new class as well, but I'll show you that what are the functionalities that are there in calendar. तो मैंने पहले टॉपिक का अपना क्लास का नाम रख दिया कि इको ऑनर्स की मेरी क्लास है और इंडियन इकोनॉमी कोर्स है मेरा. ठीक है. फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ऑप्शन आता है ज्वाइन विद गूगल मीट. तो यहाँ पर मैं गूगल मीट का एक कोड जनरेट कर सकता हूँ. फिर यहाँ पर अगर कोई मुझे वीडियो अटैच करना है, अगर मुझे कोई भी डिस्क्रिप्शन अटैच करनी है तो मैं यहाँ कर सकता हूँ. एंड यहाँ पर गेस्ट्स हैं. ठीक है. ये सब मैं आपको सिखाऊंगा कि ये सारे गेस्ट कैसे मैनेज करने हैं और ये क्या करना है. बट मैं पहले दिखाना चाह रहा था कि ओवरऑल कैलेंडर का जब आप कैलेंडर क्रिएट करते हो तो उसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस आते हैं. लेट अस क्रिएट अ कैलेंडर. नाउ कैलेंडर में आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे किसी भी डे पे तो उस डे का वो टाइम खुल जाएगा. तो फॉर एग्जांपल मैं 31 को 12 बजे कोई क्लास रखना चाहता हूँ, तो मैंने वहाँ क्लिक किया तो मेरे पास ये आ गया. अब ये कह रहा है कि ऐड टाइटल कीजिए और इवेंट है, आउट ऑफ ऑफिस है, वो सारे आपको ऑप्शंस बता रहा है. सपोज़ मैं कहता हूँ कि मुझे टेस्ट 1 है, ये मेरी क्लास का नाम है. मैं मोर ऑप्शंस पे जाता हूँ तो उससे मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस और खुल जाएंगे. अब जब मैंने टेस्ट पे गया तो ये मुझसे यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सी डेट को रखना है. तो मैं डेट भी स्पेसिफाई कर सकता हूँ. अगर मेरे गलती से कोई और डेट आ गई है तो यहाँ पर डेट स्पेसिफाई कर दो कि किस डेट को चाहिए. मैं यहाँ पर टाइम स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि किस टाइम पे मुझे करनी है, किस टाइम तक करना है, ये भी मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकता हूँ. एंड अगेन ये डेट फिर से आ जाती है यहाँ पर. अगर ये रिपीट हो रहा होगा तो यहाँ पर मेरे पास रिपीट के ऑप्शंस भी आ जाएंगे. फॉर एग्जांपल मुझे हर मंडे चाहिए तो मैं मंडे का ऑप्शन ले सकता हूँ. मुझे कुछ कस्टम फॉर्मेट में चाहिए कि ये मंडे भी हो और वेडनेसडे भी हो और फ्राइडे भी हो, तो उस तरीके से भी हो जाएगा. देन मेरे पास ये भी ऑप्शन है कि कब तक करना है. एंड्स बेसिकली ये कब तक आपकी क्लास चलेगी. तो आप जब तक आपका सेमेस्टर एंड कर रहा है तो आप उसकी डेट डाल दीजिए कि इस डेट तक ये मेरी क्लासेस चलेंगी. तो इस तरीके से
आप अपने एक कैलेंडर में कोई भी क्लास को रिकरिंग क्लास बना सकते हैं कि ये मेरी हर मंडे को क्लास होगी एंड इसी टाइम पे क्लास होगी। फिर उसके बाद अगर आप ऐड गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे तो बेसिकली ये क्या करेगा, आपको एक कोड जनरेट कर देगा और इस कोड को आप शेयर कर सकते हो अपनी क्लास के साथ, चाहे वो गूगल क्लासरूम पे हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो, तो आप उनको शेयर कर सकते हो। पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम एक जो बहुत मेजर इशू आता है, अ लॉट ऑफ टीचर्स फेस दिस इशू दैट अनवारंटेड एंड स्टूडेंट्स हु डू नॉट बिलोंग टू माई पर्टिकुलर क्लास आर ज्वाइनिंग दैट class. So how to restrict that? So we will see that functionality as well. So if I suppose I want to add certain PPT, or if I want to add certain screenshots or certain certain PPTs or PDFs from my drive, I can do that. So class से पहले आप जो भी आप information देना चाहते हैं वो भी आपके यहाँ पर ड्राइव के थ्रू लिंक हो सकती है। जो सबसे यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है गेस। अब यहाँ पर गेस क्या है, अब ये जो गेस्ट लिस्ट है यहाँ पर आपको ईमेल्स डालने हैं स्टूडेंट्स के, और प्रॉब्लम आता है कि या तो सपोज़ लॉ फैक्ट में कई बार एक क्लास में 70-80 स्टूडेंट्स है, तो आप 70-80 स्टूडेंट्स की लिस्ट को आप एक साथ डाल नहीं सकते, तो एक एक करके टाइप नहीं कर सकते। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम द इशू दैट इज़ हेयर इज़ कि आपको हर ईमेल एड्रेस के बाद एक कॉमा चाहिए। So every email, between every email there should be a comma here. It cannot be a basic Excel format, so you can't copy columns here. So what you can do is, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, यहाँ पर आप सारे स्टूडेंट्स की, फॉर एग्जांपल ये मेरे क्लास की लिस्ट है, मैं सारे स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर लेता हूँ, और डेटा कलेक्ट करके मैंने यहाँ पर सबके यहाँ अटेंडेंस लिखा है, फॉर प्राइवेसी रीजंस मैंने यहाँ पर ईमेल डाला नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मैं सबके ईमेल्स नोट कर लेता हूँ। सपोज़ यहाँ पर मैंने 2 ईमेल लिखे, यहाँ पर स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर ईमेल लिखता हूँ siddharth@gmail.com, ये मेरा एक ईमेल एड्रेस है, ठीक है। देन दीज आर जस्ट प्रॉक्सी वंस, @gmail, नॉन जीमेल भी आ जाएगा, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, test@yahoo.co.in, ठीक है। ये मेरे 3 ईमेल्स हैं। तो सपोज़ ये मेरे पास ऐसे ही मेरे पास पूरे क्लास की लिस्ट आ गई, एंड what I have done is either through Google Sheets or through the class representative, what I have asked is that every student should give me their email addresses. Now I have a list of all the students, I have a list of all the email addresses. So what you need to do here is, आप इन email addresses को copy कीजिए। ये मैंने email addresses को यहाँ से करा copy। Now the problem comes कि अगर आप इसको कहीं और paste करेंगे तो उसको paste करने का format क्या होना चाहिए, तो उसके लिए what you can do is, so suppose मैं यहाँ पर हूँ, मैंने एक word file खोली, word file में मैंने क्या किया, मैंने ये सारे के सारे पेस्ट करे, बट पेस्ट कैसे करूँगा, मैं राइट क्लिक करूँगा तो पेस्ट एज टेक्स्ट ओनली, कीप एज टेक्स्ट ओनली करना है मुझे। और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कीप एज टेक्स्ट ओनली, बिकॉज अगर आप उसको एज डेस्टिनेशन स्टाइल अगर वैसे कर देंगे तो ये एक तरीके से कॉलम की तरह पूरा का पूरा इम्पोर्ट हो जाएगा, बट यू डोंट वांट टू कीप इट एज अ कॉलम, यू वांट इट एज अ टेक्स्ट। सो जैसे ही मैंने टेक्स्ट किया मेरे पास ये 3 ईमेल्स आ गई। अब ये मेरे पास 3 ईमेल्स आ गई। अब अगेन एक और प्रॉब्लम आएगी कि ये जो 3 ईमेल्स हैं ये अलग अलग लाइंस में हैं। नाउ गूगल विल जो आपका कैलेंडर है विल नॉट टेक डिफरेंट लाइंस, इट नीड्स अ कॉमा बिटवीन ऑल द 3 और ऑल द ईमेल्स। सपोज आपके पास 70 ईमेल्स हैं तो आप एक एक करके पेस्ट नहीं कर सकते, तो आप क्या करिए, इसको पूरे को सेलेक्ट कीजिए और Ctrl+H कर दीजिए। जब आप Ctrl+H करेंगे तो बेसिकली उसके बाद ये क्या करता है, ये फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में बात करता है। लेट मी शो दिस टू यू ऑन ऑफ। सो यहाँ मैंने इसको कॉपी किया, तो एज टेक्स्ट कॉपी किया, मेरे पास ये 3 ईमेल्स आ गई, ठीक है। अब मैंने इन ईमेल्स को व्हाट आई नीड टू डू इज़ आई वांट टू क्रिएट अ फॉर्मेट सो दैट इन सब के बीच में कॉमा आ जाए। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज़ बेसिकली कॉमा सेपरेटेड हमें वैल्यूज़ चाहिए इनको, तो व्हाट वी डू इज़ आप इसको सेलेक्ट कीजिए और Ctrl+H कीजिए। जब आप Ctrl+H करते हैं तो आपके पास फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन आता है।
तो फाइंड एंड रिप्लेस, व्हाट डू यू वांट टू फाइंड एंड रिप्लेस, बेसिकली आप चाहते हो कि जहाँ पैराग्राफ चेंज हो रहा है वहाँ पैराग्राफ चेंज होते के साथ ही आपका कॉमा लग जाए। तो आप क्या कीजिए, शिफ्ट +6 दबाएंगे तो आपके पास रेज टू द पावर का साइन आ जाएगा और उसके आगे लिखिए P। सो बेसिकली इट इज़ फाइंडिंग आउट वेयर पैराग्राफ इज चेंजिंग एंड रिप्लेस दिस विद अ कॉमा। तो जैसे ही आप करेंगे ये कहेगा फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस ऑल। इसको डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग दी फ्रॉम द बिगिनिंग, आप इसको नो भी कर सकते हैं। तो इसको आप जैसे ही क्लोज करेंगे, देखिए यहाँ पर मेरे पास तीनों ईमेल एड्रेस जो हैं एक लाइन में आ गए हैं, ठीक है। अब आप इसको कॉपी, सिंपल कॉपी कर सकते हैं एंड कॉपी करके नाउ अब ये 70 हो 80 हो 100 हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस यहाँ पर इनको पेस्ट करना है, दैट्स इट। आपका ये पेस्ट हो गया। अब उसके बाद जब आपने पेस्ट कर दिया तो इन सबको ईमेल जाएगी, ठीक है। मैं अभी ईमेल भेज नहीं रहा, बट उसके नीचे इफ़ यू सी यहाँ पर गेस्ट परमिशंस के बारे में बात कर रखी है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू डोंट वांट दैट द स्टूडेंट्स दैट यू आर सेंडिंग दिस ईमेल or this invite should be able to modify this particular event, or they can invite others for this event. So they can't invite anyone else for this event. Only these particular students will get this link and only these can automatically join. By the way, this is an automatic version. इससे आपके स्टूडेंट्स को बार बार आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जैसे ही आप अपनी गूगल क्लासरूम स्टार्ट करेंगे, जब आप अपना गूगल मीट स्टार्ट करेंगे, तो ये सारे के सारे स्टूडेंट्स जो जिनके पास ये रिक्वेस्ट गई हुई है, जब वो एक्सेप्ट कर लेंगे इस चीज़ को, तो वो ऑलरेडी लॉग इन कर जाएंगे अपने आप ही, आपको सेपरेट परमिशन देने की ज़रूरत नहीं है। नाउ एक इशू जो आएगा, वो इशू क्या आएगा कि जब आप इसको रन करने की कोशिश करेंगे, ये मैंने अपना पर्सनल ईमेल डाल दिया। अब मैं अपने पर्सनल इवेंट से ही अपने आप को इन्वाइट भेज रहा हूँ, और उसके बाद यहाँ पर जब मैं इन्वाइट भेजूँगा सेव, तो यहाँ मुझसे वो पूछ रहा है वुड यू लाइक टू सेंड इन्विटेशन टू ईमेल वाया ईमेल टू गूगल कैलेंडर गेस्ट, तो आई विल से येस सेंड। दूसरी चीज़ जो ये बोलेगा कि ये जो गेस्ट हैं, द पीपल दैट आई एम एक्सटेंडिंग दिस इन्विटेशन टू आर नॉट इंटरनल पीपल। बेसिकली वो जो ईमेल है, ये जो सारी जो मेरा ईमेल यूज़ कर रहा है, ये ईमेल गार्गी कॉलेज का ईमेल नहीं है। आपके केस में ये लॉ फैक का ईमेल नहीं होगा, इनके पर्सनल ईमेल्स होंगे। But I was talking to Jay, so he told me that all students are also being provided this professional institutional ID. So if that happens, तो उस केस में ये guest outside the organization नहीं होगा, वो guest inside the organization हो जाएगा। But since at Gargi College we do not have students do not have this this internal ID, so in our case it's usually the external to organization. So मैं कहूँगा कि invite external guests, और ये मेरे पास यहाँ पर सेव हो गया इवेंट। अब मैं इस इवेंट को कई जगहों पे कॉपी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अपने पूरे कैलेंडर में जहाँ जहाँ मुझे चाहिए कि वो कॉपी कर लिया। फॉर एग्जांपल हर मंडे करना था, तो हर मंडे की ये वाला क्लास तो मैं 30 नवंबर तक कर सकता हूँ। सपोज़ वेडनेसडे को किसी और टाइम पे है, तो वेडनेसडे को मैं उस टाइम पे करके उस सेम क्लास को यहाँ पर रख के उसको पूरे सेमेस्टर के लिए अगेन अमेंड कर सकता हूँ। सो दिस वे व्हाट हैपन्स इज़, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं ऑर्गेनाइज़र भी आ रहा हूँ, यहाँ पर मेरा दूसरा आईडी भी आ रहा है, बेसिकली कौन कौन इनवाइटेड है। ये मुझे रिमाइंडर भी दे देगा मेरे मोबाइल पे कि 10 मिनट पहले कि यू हैव अ क्लास। मुझे बस ये जॉइन का ये जो रेफरेंस आईडी है ये पेस्ट करना है, ये कॉपी करना है और इसको स्टूडेंट्स को देना है, एंड स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एंटर। नाउ आस्क योर स्टूडेंट्स, उनके पास ये ऑप्शन आएगा गोइंग येस नो और मे बी, तो आस्क योर स्टूडेंट्स टू क्लिक येस। सो वो येस करेंगे तो उससे ऑटोमेटिकली दे विल बी एबल टू एंटर द क्लास। नहीं तो व्हाट विल हैपन इज़ यू आर कंडक्टिंग योर क्लास एंड बार बार आपके गूगल मीट पे आपको पीछे से बैकग्राउंड से आवाज़ आएगी, पिंग आएगा कि दिस पर्सन आउटसाइड द कॉलेज और दिस पर्सन वांट्स टू अटेंड द क्लास। सो एक मेजर इशू जो होता था कि स्टूडेंट्स कहीं कोई भी स्टूडेंट आ रहा है, अनोनिमस स्टूडेंट आ रहा है, वो आपका सारा का सारा इशू जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। हाउएवर एक और इशू जो मुझे बताया गया था आपके जो फेस कर रहे हैं वो है कि स्टूडेंट्स
क्या करते हैं, कई बार प्रेजेंट स्क्रीन करना शुरू कर देते हैं. अनफॉर्चुनेटली दी सिचुएशन इज़ कि गूगल ने अभी तक इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकाला है. मेरे पास एक प्राइवेट सोल्यूशन है, मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, बट अगेन वो पेड सोल्यूशन है एंड आई एम नॉट श्योर कि वो वर्क करता है नहीं करता है. बट गूगल इज़ वर्किंग ऑन दिस एज वी स्पीक. मैंने काफ़ी सारे गूगल के ब्लॉग्स पढ़े हैं इस चीज़ के ऊपर. गूगल इज़ वर्किंग ऑन दिस फंक्शनैलिटी जो जूम में भी है, गो टू मीटिंग में भी है, कि आप स्क्रीन शेयरिंग रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो सिर्फ प्रेजेंटर, एक पर्टिकुलर होस्ट को. वो गूगल भी जल्दी लाएगा. बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब आपके पास स्टूडेंट्स ही लिमिटेड हैं, जब आपको पता है कि यही मेरे स्टूडेंट्स हैं, दिस इज़ माई क्लास, सो यू कैन ईजिली मॉनिटर दैट हु इज़ शेयरिंग द स्क्रीन. सो इसमें अनोनिमिटी तो है ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप सिर्फ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को ही एंटर करने दे रहे हो अपने सेशन में. सो बिकॉज ऑफ दैट कटिंग ऑफ दैट अनोनिमिटी आपकी क्लास काफ़ी ज़्यादा सिक्योर हो जाती है. बट I think within a month or so Google will roll out with a new update in its Google Meet, and वो option भी आ जाएगा according to what I'm reading in the Google blogs. Then ये आपका पूरा प्रोसीजर हो गया. Now इससे क्या होगा, इससे if you see what will happen is that जब आप अपने Google Meet पे जाएंगे, पहले मैं यहाँ पर सबसे एक बार पूछना चाहूँगा कि कोई इशू है या नहीं है. मैं आपको पहले अपने पूरे मंथ का दिखाता हूँ. ये देखिए, ये मेरा पूरा सितंबर है. मेरा पूरा सितंबर यहाँ पर पॉपुलेटेड है. मेरे पास हर डेट पे मेरे पास क्लासेस हैं, टाइम है कि ये चीज़ें हैं. प्लस मेरे पास यहाँ पर अगर देखिए तो मेरे पास असाइनमेंट्स वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरा असाइनमेंट एक क्रिएट किया हुआ है गूगल क्लासरूम के ऊपर. तो वो भी मेरे पास मेंशन आ रहा है कि यहाँ पर बच्चों को सबमिट करना है इस दिन पे एक असाइनमेंट. और वो हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, दैट ऑल्सो आई विल शो यू. There's something called classroom calendar, there's something called Google calendar. अभी हम Google calendar पे, हम classroom calendar पे नहीं गए हैं. ठीक है, दोनों में आपको डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंस समझने की ज़रूरत है. बट आई होप बिफोर वी स्टेप ऑन टू एनी अदर एस्पेक्ट, पहले मैं ये पूछना चाहूँगा सबसे कि सबको ये एस्पेक्ट क्लियर है या नहीं है. कोई क्वेश्चन हैं कैलेंडर को स्पेसिफिकली लेके? Now you can hear me? Yes, I can hear you now. Yeah, I was just saying कि you were trying to explain to your best, but the difficulty was कि if you take an example of either a list, how to put that, how to insert that, and get the first to fit them in that box, and how to take the attendance. That difficulty, in fact, I was facing. Few things I could understand, but the rest I was finding a difficulty. गुंजन मैम, अभी मैंने अटेंडेंस के बारे में अभी डिस्कशन अभी मेरा बाकी है, क्योंकि मैं उसके लिए प्लगइन पे जाऊंगा. बट अभी हम प्लगइन पे नहीं है. अभी जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम देखना चाह रहे हैं कि वो ये है कि आप गूगल कैलेंडर को यूज़ करके एक स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को ही कैसे इनवाइट कर सकते हैं. और उसका जो पूरा प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है. मैं 1 मिनट में वापस आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसको. लेट्स एक छोटी सी क्वेरी और है. हाँ, sure, ma'am. Is it not feasible to conduct a class on a iPhone, or is it we are too supposed to take it? ये सब इजीली मैनेज हो सकता है क्या? मैम, आईफोन पे क्लास लेना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, स्पेशली अगर आपको स्क्रीन शेयरिंग करना है. आई मीन वो पॉसिबल है? नहीं, वो स्क्रीन शेयरिंग तो सब कुछ पॉसिबल है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे थोड़ा सा डाउट लगता है कि किस तरीके से, किस एफिशिएंटली आप कर सकते हैं. आई नो सर्टन टीचर्स आर डूइंग इट, but it's not something that I have tried, because I'm used to laptop, and then I use iPad as well, I use my iPhone as well. But at the same point of time मैं स्क्रीन प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं स्क्रीन पे ही लिखता हूँ अपनी क्लास के लिए. So I use my stylus. So it's a touchscreen laptop. So with that touchscreen laptop I use this stylus and I write on my screen. तो बाकी इट्स योर पेडागोगिक स्किल कि आप किस तरीके से कंफर्टेबल हैं. इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद एन आईफोन, नथिंग लाइक दैट. आई नो लॉट ऑफ टीचर्स व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि वो आईपैड पे स्क्रिबल कर रहे हैं, और आईपैड पे स्क्रिबल करके उनके लैपटॉप पे वो कास्ट हो रहा है और फिर स्टूडेंट्स के पास जा रहा है. तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आप आईफोन से भी कर सकते हैं, बट ये जो पूरा प्रोसेस है, फॉर एग्जांपल आपको जो ये कैलेंडर है और कैलेंडर में जो लिस्ट बनाना है, वो आप आईफोन से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पहले एक्सेल शीट में आपको सारे के सारे स्टूडेंट्स का ईमेल चाहिए होगा. फिर आप उसको कन्वर्ट करेंगे, आप उसको एक कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ के फॉर्म में, फिर आप उसको पेस्ट करेंगे. तो ये जो पूरा एस्पेक्ट है, ये सारा एस्पेक्ट करना
ये थोड़ा चैलेंजिंग है until unless आप एक एक ईमेल को आप आईफोन पे लिख के आप टाइप करके करना चाह रहे हैं, दैट्स अ सेपरेट इशू. सो बट मुझे ज़्यादा ईजी लगता है पर्सनली, दैट्स माई पर्सनल प्रेफरेंस टू यूज़ अ लैपटॉप. चलिए लेट मी शो यू अगेन. सपोज मैं कह रहा हूँ कि मुझे यस If I may ask, I have a clarification like this. यस रोहित सर. When we have to add like you have shown us how to add the guest, and you have shown us how to bifurcate the email IDs. So let's say, is it necessary to paste the email IDs? Rather, we can share the class like the Google Classroom code we have. So do we have any feature like we can share the code with the students and they can join the Google Meet? सर दैट इज़ पॉसिबल. आप गूगल मीट ये शेयर कर लीजिए, बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप इनवाइट लिस्ट नहीं बनाते हैं, what the problem is that then through that invite anyone can enter the class. All you need is that invite, and with that invite what will happen is, suppose you have sent this invite through WhatsApp to 70 of your students, then what will happen is कि आप एक एक करके 70 स्टूडेंट्स को एक एक करके आप रिक्वेस्ट उनकी एक्सेप्ट करेंगे. आपकी 50 मिनट की क्लास के अंदर आप 20 मिनट सिर्फ बच्चों को एक्सेप्ट करते हुए निकल जाएंगे आपके, तो वो एफिशिएंट नहीं होगा. प्लस उसमें जो प्रिवेसी का इशू है जो मैंने रेस किया कि आपको ये नहीं पता कि कौन मेरा स्टूडेंट है कौन मेरा स्टूडेंट नहीं है. कोई एलियस के साथ आ सकता है. फॉर एग्जांपल किसी ने एक नया ईमेल एड्रेस जो मेरे स्टूडेंट नाम से है और फिर एंटर कर गया, एंड देन पूरी क्लास को परेशान कर रहा है. सो दिस इज़ अ मच मोर सिक्योर वे. दिस इज़ नॉट दी प्रॉब्ली दी बेस्ट वे, क्योंकि बेस्ट वे तो आप और भी बहुत सारे तरीक़ों से कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ वे दैट आई फाउंड दैट इज़ द मोस्ट सिक्योर. इनफैक्ट काफ़ी सारे गूगल के यूज़र्स एंड काफ़ी सारे गूगल के ब्लॉग्स पढ़ने के बाद मुझे ये बेस्ट तरीका लगा है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन द टेक्निकल फील्ड अग्री विद मी दैट दिस इज़ प्रॉब्ली राइट नाउ प्रॉब्ली द बेस्ट वे टू गो अबाउट. Mr. Rathore, can I ask you? Let me just complete. I have a Yes. added query. Yes. Ajay sir. So my only request to you, though you have nicely explained how to bifurcate the email IDs, but it would be very nice of you if you could maybe in a written text or in the chat message, if you could just type that, because those technical things we could not note down, and it seems very important. Maybe at the end or later on, you can, if you could share that thing in right. I will definitely do that, sir. I will definitely do that. In fact, I'm recording this entire video, and there's another video of mine which was posted in Delhi University teachers group. In fact, this is not the first FDP. So I've been doing it. So I will share the recording. I will also write the steps, that what are the 1, 2, 3 steps, and how you can convert a normal Excel sheet into a comma separated value Word file, and then you paste it on the Google Calendar. Okay, sir. Thank you. Sorry, Dr. Siddharth Rathore, sorry Yes. to interrupt you, Yes. but I think it will be a good idea to let's finish the presentation and later on you can take the individual questions. Sure, Neelam. Otherwise, flow of the presentation will actually go. Okay. Alright. I'll definitely do that. Okay. So let's continue. I will be a little slow this time so that it's much more easier to comprehend. So अभी तक जो हमने किया, हमने सिर्फ गूगल कैलेंडर जब आप खोलेंगे, यहाँ से प्लस साइन पे भी आप जा सकते हैं. प्लस साइन पे आप जाके यहाँ पर आपको टाइटल डालना है, आपको टाइम डालना है, और यहाँ पर आपको जस्ट अ सेकेंड. सो बेसिकली आप कहीं पर भी क्लिक करेंगे, उसको क्लिक करके आप मोर ऑप्शंस पे जाके आप यहाँ पर व्हाट यू नीड टू डू इज़ पुट इन द टाइटल ऑन दिस प्लेस, ऐड अ गूगल मीट कॉन्फ्रेंसिंग लिंक विच विल क्रिएट अ लिंक दैट यू कैन शेयर विद द स्टूडेंट्स, एंड यहाँ पर गेस्ट लिस्ट आपको डालनी है. गेस्ट लिस्ट का तरीका जस्ट 2 more minutes I'll explain it again. हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये मेरे सारे स्टूडेंट्स हैं. इन सारे स्टूडेंट्स के मैंने यहाँ पर क्लास अटेंडेंस की जगह यहाँ पर ईमेल एड्रेस मंगवा लिया, एंड उस ईमेल एड्रेसेस को मैंने यहाँ से करा कॉपी, एंड यहाँ से कॉपी करके मैंने एक ब्लैंक वर्ड फाइल खोली. वर्ड फाइल में जब मैं वर्ड फाइल में गया तो वर्ड फाइल में मैंने उसको पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद मैंने Ctrl+H दबाया. Ctrl+H दबाने के बाद आई यूज्ड रेज टू द पावर P in find and in paste and in replace में मैंने कॉमा लगा दिया.
तो उससे उसने ये तीनों ईमेल्स को बेसिकली, आप इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर पहला ईमेल है, फिर कॉमा है, फिर दूसरा ईमेल है, फिर कॉमा है, एंड देन तीसरा ईमेल है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके अपनी जो गेस्ट लिस्ट है उसके अंदर डाल दिया, यहाँ पर गेस्ट लिस्ट में डाल दिया। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आप मॉडिफाई इवेंट का आप ऑप्शन नहीं देंगे स्टूडेंट्स को, आप इनवाइट अदर्स का ऑप्शन नहीं देंगे। एंड ऑटोमेटिकली व्हेन यू सेव दिस, व्हेन यू प्रोसीड विद दिस, what will happen is all of your students will get an email, and all they need to do is accept your class on that email, and when the time comes, they will automatically be logged into this class, and only these students who have the access, who you have mentioned here as guests, only they will be able to automatically log into your class. Anyone else whose email has not been provided here will need a separate permission, and thereby you can easily manage your entire class. तो अभी तक हमने सिर्फ ये एस्पेक्ट कवर किया है. Now let's, ये कैलेंडर का एस्पेक्ट था, एंड लेट्स मूव ऑन टू मीट. नाउ मीट के लिए मैं अपने पर्सनल आईडी पे जाता हूँ. तो आप मीट कैसे शुरू करेंगे, यहाँ पर अगेन 9 पिन्स पे आप जाइए. 9 पिन्स पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपके पास मीट का एक ऑप्शन आ जाएगा. ये आपके पास मीट का ऑप्शन आ गया. तो जब मैं मीट के ऑप्शन पे जाता हूँ तो यहाँ पर वो न्यू मीटिंग के बारे में बोलता है या लिंक कोड के बारे में बोलता है. अगर आपके पास न्यू मीटिंग जनरेट कर रहे हो तो वो आ जाएगा. कोड आप जनरेट कर रहे हो तो आप कोड डाल दीजिए. तो मैं न्यू मीटिंग डालता हूँ. ठीक है. इंस्टेंट मीटिंग करनी है, शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर करना है. तो यहाँ पर शेड्यूल जो है ऑलरेडी मेरी हुई हुई है. इफ़ यू सी माई गूगल कैलेंडर, मैं अपना पर्सनल आपको दिखाता हूँ, प्रोफेशनल दिखाता हूँ. प्रोफेशनल मीट पे जाते हैं. ये प्रोफेशनल मेरा मीट खुल गया है. यहाँ पर लिखा हुआ है जॉइन और स्टार्ट अ मीटिंग. अगर मेरी क्लास शेड्यूल्ड होगी तो यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि मेरी ये शेड्यूल्ड ऑलरेडी क्लास यहाँ पर ऑलरेडी है. सो दैट वेज आप अपनी क्लास को सीधा स्टार्ट कर सकते हैं. और मैं इस वाले लिंक पे वापस आता हूँ. ये देखिए, शेड्यूल मीटिंग, शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर. तो शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर जैसे ही आप करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये करा, तो यहाँ से भी मैं गूगल कैलेंडर में शेड्यूल कर सकता हूँ अपनी पूरी क्लास, और उसको मैंने सेव कर दिया. तो जब भी वो टाइम आएगा, जैसे ही आप खोलेंगे अपना गूगल meet.google करेंगे, आपके पास ये ऑप्शन खुल जाएगा, क्या कहते हैं, आपकी क्लास का. सिद्धार्थ जी, मैं इंटरप्ट फॉर अ मोमेंट. यस मैम. आप ये कहना चाहते हैं कि अगर शेड्यूलिंग करनी होगी गूगल मीट पे तो नेसेसरली मुझे कैलेंडर से जाना है? मैम, कैलेंडर से जाने का ज़्यादा फ़ायदा है ये है कि आप अपने ऑडियंस को ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं. सेलेक्ट कर पाऊंगी. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. Okay. इससे ये फ़ायदा है. यूजुअली जो टीचर्स इंस्टेंट मीटिंग क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ आ रही है टीचर्स को, मेजरली यूनिवर्सिटी में. वो यूनिवर्सिटी में टीचर्स को प्रॉब्लम यहाँ पर आती है. मैं आपको दिखा, जो प्रॉब्लम आती है वो कहाँ आती है. यहाँ पर टीचर्स क्या करते हैं कि गेट मीटिंग लिंक या फिर स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग. तो इन दोनों से क्या होता है कि इन दोनों से जिसके पास भी ये कोड होगा, वो कोड, और स्टूडेंट्स, शरारती स्टूडेंट्स क्या करेंगे, डिविएंट स्टूडेंट्स, व्हाट दे विल डू इज दे विल शेयर दिस कोड विद अदर फ्रेंड्स, and they will create proxy email addresses, and you would not know ki whether this student is actually a student of mine or not. And once they enter your class, and suppose बहुत सारे bulk में a lot of students enter the class, then it will be a ruckus. You will not be able to control and manage the class. So that is why my emphasis, I put a huge emphasis that you should always schedule a calendar, schedule your entire calendar, and it's just a one time effort, ma'am. One time effort क्यों है? क्योंकि एक बार आपने, once you have scheduled it, see, I'll show you my schedule. See, ये मेरा पूरा का पूरा मेरा, just a second. कई बार मीटिंग जरूरी नहीं है कि रेकरिंग हो. सपोजिंग एक वन टाइम ओकेजन है, तो वन टाइम मीटिंग रख लीजिए मैम. अगर आप वन टाइम मीटिंग रखना चाहते हैं तो वन टाइम रख लीजिए. वो भी आपका वो भी बेनिफिट करेगा. उसके अंदर भी सिर्फ लिमिटेड लोग ही आ पाएंगे. तो इट्स जस्ट टू कंट्रोल द ऑडियंस, टू हैव योर ओन प्रिवेसी ऑफ योर ओन क्लास. सो मैंने जो पूरा पॉपुलेट किया हुआ है, इफ़ यू सी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मेरा नवंबर तक मेरी सारी क्लासेस सारी शेड्यूल्ड हैं. तो उसकी वजह से मुझे कभी भी वापस क्लास लेने के लिए मुझे कोई मीटिंग शेड्यूल नहीं करनी पड़ती. ये सारे स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली मेरी हर क्लास में आए हुए हैं. हर क्लास में अलग सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं. मुझे सिर्फ गूगल मीट पे कुछ नहीं करना होता. मेरे पास यहाँ पर मेरे पास शॉर्टकट है. मैं गूगल मीट पे जाता हूँ और क्लास शुरू कर देता हूँ.
विदाउट एनी टेंशन कि कौन है क्या है। अगर किसी स्टूडेंट का ईमेल मेरे पास नहीं था पहले तो मैं उसका ईमेल उसमें अपने इसमें एडिट करके एक्स्ट्रा ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, या फिर मुझे पता है कि अच्छा ये स्टूडेंट है उसको एडमिट कर लिया। तो इस तरीके से आई कैन मैनेज माई इंटायर सेमेस्टर एज वेल एज कंट्रोल द अमाउंट ऑफ पीपल, द फ्लो ऑफ द क्लास। एंड सपोज कोई शरारत भी कर रहा है क्लास में तो आप उसको रिमूव कर दीजिए। दैट्स ऑल्सो वेरी सिंपल कि आप सपोज यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एडमिन राइट्स नहीं है क्योंकि ये मीटिंग मैंने नहीं शुरू करी हुई है, बट इफ़ आई हैड द एडमिन राइट्स तो यहाँ पर मेरे पास रिमूव का ऑप्शन आ जाता है, या फिर यहाँ पर आप अगर आप देखें तो मेरे पास किसी भी नाम के आगे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर रिमूव का ऑप्शन आ जाएगा। एक बार आपने किसी को रिमूव कर दिया तो दैट पर्सन विद द सेम आईडी विल नॉट बी एबल टू एंटर। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो ये सब फंक्शनैलिटीज़ की वजह से आई हैव पुट अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन गूगल कैलेंडर, scheduling of classes through Google Calendar rather than scheduling of classes through direct Google Meet. So this is one point that I wanted to highlight. Then let's move forward to the attendance issues. एक अटेंडेंस बहुत मेजर इशू रहता है। आपने क्लास शुरू कर ली। Mr. Siddharth? Yes. Mr. Siddharth? Yes, Sneh ma'am. Mrs. Siddharth, sorry to interrupt. It's a related question. Sure ma'am, please ask. So it was a related query, that's why I'm asking it now. Sure ma'am. Do we have to schedule the class only with Google Calendar? Can't we schedule it with Google Classroom? Sir, when we are scheduling the class, can we schedule it with Google Classroom as well? Because that's what I understand, that we schedule the class from Google Classroom. Yes ma'am, you can schedule the class from Google Classroom as well. I'll show you that as well. I'll show you how to do it from Google Classroom. That is also possible. उसमें भी आपकी सिक्योरिटी मेंटेन हो सकती है क्योंकि आपके Google Classroom में जो स्टूडेंट्स एंटर जिन्होंने आप रजिस्टर कर रखा हो उस पर्टिकुलर क्लास के लिए, only those students will be able to enter that particular class. So both ways are manageable. I find Google Calendar, मैं शुरू से Google Calendar यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए I have a biasness towards Google Calendar, but I mean there's no harm in scheduling the class through Google Classroom. There are alternatives to schedule a class. Particularly, just to add a point, now Google Meet is integrated with Google Classroom. Yes. So I mean, one time you can generate the code, and those who are authorized only, I think they can only. They can only. That is also possible. When we'll come to Google Classroom, I'll show you that technique as well. So there are both techniques. There are different ways in which you can do it. The way why do I focus on Google Calendar is because उससे मेरे पास कैलेंडर मेरे मोबाइल पे कैलेंडर का सारे अपडेट्स आते रहते हैं। सो मुझे हमेशा ध्यान रहता है कि कैलेंडर मुझे 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले रिमाइंड करा देगा दिस इज अ पर्टिकुलर क्लास दैट इज अप्रोचिंग। सो दैट वाज फॉर मी इट्स ईजी। इफ आई हैव टू टेक अनदर सेशन, फॉर एग्जांपल व्हेन आई वाज शेड्यूलिंग दिस सेशन, अगेन थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ में इट बिकम्स अ लिटिल ईजियर। आई विल शो यू हाउ। ये देखिए, सो these are my classes. मैंने उनको कलर कोड कर रखा है क्लासेस को, एंड these are my other sessions. लॉ एंड इकोनॉमिक्स पे मेरे अदर कुछ सेशंस हैं. सो with this color coding I can easily differentiate कि अच्छा this particular day is not free for me. यहाँ पर मेरे पास टाइम है, यहाँ पर मेरे पास टाइम नहीं है. सो इस तरीके से थोड़ा आपका पूरा वीक आपका मैनेज हो सकता है. इफ़ यू वांट टू शेड्यूल समथिंग, you can easily schedule those classes or any other activity, professional activity that you want. So that's why in a more professional manner I like this. But the same approach for having a class can also be done through Google Classroom. In fact, I was going to cover this. If you see this, ये देखिए, if you see this, ये मेरी Google Classroom है. यहाँ पर मेरे पास Meet link है, and I have these people in my class, and only these people will be able to enter this class, enter this Google Meet. So that's another way. I'll teach you this particular method as well. Both are substitutes of each other. Both have their own benefits. Now, coming to having discussed all of this, that how to actually start a class and how to schedule a class, which is a major challenge. Let's come to the second major challenge, which is to take an attendance. And the reason that I'm covering this before even covering Google Classroom is because of the integration of Google Meet with the attendance plugins. So now what I want you to do is, most of you would not have had these plugins.
So all that you need to do is go to your whatever professional ID that you are using, professional Chrome ID. So I can easily identify this is my professional ID. So यहाँ से what I need to do is I need to go to Chrome Store, Chrome Web Store. So it is something like your iPhone के अंदर your App Store and your in your Android you have that Play Store. So it is very similar, Chrome Web Store. And once you go to Chrome Web Store, आपके पास इस तरीके से एक आउटपुट आ जाएगा, and you can see that you are again on your professional ID. Now for this what you need to do is आपको एक extension लेना है. अब वो extension क्या है, you need to just type in meet attendance. आप meet attendance टाइप कीजिए, आपके पास 2-3 ऑप्शंस आ जाएंगे. एक ऑप्शन आएगा आपके पास ऐसा, एप्पल के साथ मीट अटेंडेंस क्ले कोड्स का. आई वॉज यूजिंग दिस, बट इस अटेंडेंस के जो प्लगइन है उसमें थोड़े इश्यूज आ रहे हैं, इसलिए इसकी रैंकिंग भी, इफ़ यू सी, इसकी रैंकिंग 3.5 स्टार्स, ऑलमोस्ट 3 स्टार्स हो गई है. एंड इफ़ यू सी गूगल मीट अटेंडेंस, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, गूगल मीट अटेंडेंस बाय एलन कॉले. सो दीज आर नथिंग बट दीज आर बेसिकली कोड्स. इनके ओपन कोड्स हैं. आपको गिटहब पे, अगर कोई गिटहब पे है तो उनको वो कोड्स भी मिल जाएंगे. तो ये बहुत काफ़ी सिंपल वे है इसको क्या कहते हैं, आपकी पूरे अटेंडेंस को कैलकुलेट करने का और देखने का कि कितने लोग आए हैं. सो आप क्या कीजिए, जैसे ये ऐड टू क्रोम करा हुआ है, मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है इसलिए मेरे पास रेटेड आ रहा है, नहीं तो आपके केस में यहाँ पर ऐड टू क्रोम आएगा. तो जब आप इसको ऐड टू क्रोम करेंगे, आपको यहाँ पर अपने पिक्चर के साथ में, आपके आईडी के साथ में, यहाँ पर आपको आपके सारे प्लगइन्स, सारे एक्सटेंशन दिख जाएंगे. फॉर एग्जांपल मेरे केस के अंदर मेरे पास ये सारे प्लगइन्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ. ठीक है, यहाँ पर मुझे गूगल मीट का प्लगइन, इफ़ यू कैन सी, गूगल मीट अटेंडेंस का प्लगइन मेंशन्ड है. सो आपको ये प्लगइन चाहिए और उसके साथ में एक पिन का ऑप्शन है. इफ़ यू सी यहाँ पर एक पिन बना हुआ है, तो जब आप इसको पिन कर देंगे तो आपके पास यहाँ पर गूगल मीट का अटेंडेंस का वो बन जाएगा. ये जो टिक का साइन है, ग्रीन टिक का साइन है, बेसिकली ये प्लगइन है. अब ये प्लगइन जो है हमारे लिए यूज़फुल कैसे है, एक बार आपने प्लगइन इंस्टॉल कर लिया, वो 2 मिनट लगाता है इंस्टॉल करने के लिए और यहाँ पर कर लेता है इंस्टॉल. उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब आप क्लास अपना सेशन ले रहे होते हैं तो यहाँ पर इफ़ यू कैन सी एक विंडो आ रही है जहाँ पर क्लास लिस्ट. कैन ऑल ऑफ यू सी दिस क्लास लिस्ट? यहाँ पर क्लास लिस्ट लिखा हुआ है. आई एम नॉट श्योर इफ़ यू कैन सी दिस. Yes, sir, we can see. हाँ, सो बेसिकली यहाँ पर आपकी क्लास लिस्ट आ गई. अब ये क्लास लिस्ट को अगर आप देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पर ये सारे लोग आ गए जो ये सेशन अटेंड कर रहे हैं. तो इन सब के नाम आ गए मेरे पास, डिटेल्स आ गई. बट अब मेरे पास 40 लोगों की क्लास है, बट मुझे चाहिए कि ये 40 लोगों को मैं अब अटेंडेंस कैसे दूँ. ये एक मेजर इशू है कि मैं यहाँ से या तो कॉपी पेस्ट करूँ, बट उसके बजाय आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा आपका सेव अटेंडेंस एज CSV फाइल. CSV इज़ बेसिकली कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल. तो जब आप इसको सेव करेंगे, लेट मी सेव इट फॉर यू. मैंने सेव किया, यहाँ देखिए मेरे पास एक फ़ाइल सेव हो गई, क्लास लिस्ट, जिसका डेट भी यहाँ पर मेंशन्ड है और वो एक्सेल फाइल के फॉर्म में है. ये मेरे पास यहाँ पर क्लास लिस्ट होगी. बट अगेन इफ़ यू सी, ये बहुत हैपैज़र्ड है क्योंकि यहाँ पर लोगों के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पर उनका कब वो ज्वाइन हुए वो लिखा हुआ है, कितने टाइम तक हुए, ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं. बट मुझे इसको एक यूजेबल फॉर्मेट में चाहिए. तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा शीट बना लीजिए. यहाँ पर आप एक्स्ट्रा शीट लेके आइए और यहाँ पर डेटा पे जाइए. डेटा पे आप जाएंगे तो बेसिकली मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं एक इंपोर्ट करना चाहता हूँ CSV फाइल. तो यहाँ पर फ्रॉम गेट डेटा फ्रॉम आपके पास आ जाएगी फाइल. तो गेट डेटा फ्रॉम वर्कबुक या फ्रॉम टेक्स्ट या CSV फाइल. तो आप टेक्स्ट या CSV फाइल करेंगे तो अब ये मुझसे पूछेगा कि कहाँ से आपको CSV फाइल उठानी है. मेरी CSV फाइल मेरे पास डाउनलोड फोल्डर में आई होगी. ये देखिए, ये मेरे पास डाउनलोड फोल्डर में ये फाइल आ गई 1604 पे. तो मैंने इसको क्लिक किया और इंपोर्ट कर दिया. आई शो इट टू यू अगेन. मैं पहले एक बार दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर से करने के लिए. अब देखिए यहाँ पर उसने क्या किया, बेसिकली वो जो कैरेक्टर्स थे वो सारे के सारे कॉमा के बेसिस पे वो सारे के सारे कॉलम्स सेपरेटेड थे. इसीलिए उसको डीलिमिटर, बेसिकली कॉमा वाज या कोलन वाज अ डीलिमिटर. तो आपने वो डीलिमिटर हटा के उसको कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया है. अब आप बस इसको लोड कर दीजिए, 2 मिनट लगाएगा और आपके पास एक बहुत ही, ये देखिए मेरे पास, देखिए आप क्या ऑप्शन है पूरा मेरे पास. देखिए क्या क्या आ गया मेरे पास. मेरे पास टाइम आ गया,
कि टाइम कौन से डेट को क्लास हुई है, मेरे पास आ गया कि किस टाइम पे मैंने क्लास शुरू करी है 15:05 पे, फिर मेरे पास अराइवल टाइम आ गए लोगों के कि लोग कब कब अराइव हुए हैं और कितने मिनट क्योंकि ये 4:03 पे मैंने अटेंडेंस ली है, इसलिए उस तक की अटेंडेंस पूरी आ गई। अगर कोई बार बार ज्वाइन कर रहा है, फॉर एग्जांपल गुंजन गुप्ता मैम का शायद से कनेक्शन में कुछ इशू होगा, तो उन्होंने पहले 9 मिनट के लिए ज्वाइन किया, फिर उन्होंने 29 मिनट्स के लिए ज्वाइन किया, फिर उन्होंने 17 मिनट्स के लिए ज्वाइन किया, फिर 1 मिनट के लिए ज्वाइन किया, फिर 13 मिनट्स के लिए, फिर 5 मिनट्स के लिए, तो आपके पास मल्टीपल ज्वाइनिंग टाइम्स भी आ गए। सपोज एक स्टूडेंट है जो 1-1 मिनट ही आ रहा है पूरी क्लास में, बट सिर्फ ये शो करने के लिए कि मैं क्लास में था या थी, तो मुझे पता चल जाएगा कि उसका वो बेसिकली उसका पर्पस क्लास अटेंड करने का नहीं था, सिर्फ वहाँ पर हाजिरी देने का था, प्रॉक्सी मारने का था। तो यहाँ पर मेरे पास सारे नाम आ गए। अब मैं इन सारे नाम को कॉपी कर सकता हूँ, और कॉपी करके फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इनको सबको कॉपी किया, Ctrl+C, और मैं अपनी यूजुअली मैं आपको बताऊँगा कि मैं कहाँ पेस्ट करता हूँ। चलिए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि मैं पेस्ट कहाँ करूँगा इसको। मैं आपको ये शीट भी दे दूँगा, ठीक है, बट ये शीट मुझे आपके हिसाब से उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके रूल्स थोड़े से लॉ फैक्ट के थोड़े से रूल्स डिफरेंट होंगे अटेंडेंस के एज़ कम्पेयर टू अदर्स। और यहाँ पर मेरे पास सारे बच्चों के नाम आ गए, रोल नंबर आ गए, एंड यहाँ पर मैंने उसको पेस्ट कर दिया। देखिए सबके नाम मेरे पास यहाँ पर आ गए, सारे स्टूडेंट्स के नाम, आपके केस में आपके सारे फैकल्टी मेंबर्स के नाम आ गए। मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नाम होंगे यहाँ पर, और ये अल्फ़ाबेटिकली उसने अरेंज किया, तो ये बेसिकली अगर आप डॉक्टर का वो छोड़ दें तो यहाँ पर मेरे पास अल्फ़ाबेटिकली ये आ जाएंगे सारे नाम, और मैं उनके हिसाब से यहाँ पर उनको प्रेजेंट या एब्सेंट लगा सकता हूँ। ये मैं अभी बाद में दिखाऊंगा कि मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं प्रेजेंट लगाता हूँ तो मेरे पास पूरी यहाँ पर अटेंडेंस कैलकुलेट हो रही है। ये फॉर्मूलाज मैं आपको दिखाऊंगा अभी एंड में, और अटेंडेंस के मार्क्स भी आ रहे हैं, अटेंडेंस की परसेंटेज भी आ रही है आपके। आगे जाके आप उसके पीपीटी या टेस्ट के मार्क्स भी लगा सकते हैं, और टोटल इंटरनल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये शीट मैं आपको बाद में दिखाता हूँ कि ये ऑटोमेट कैसे हो रही है, बट दिस इज़ द प्रोसेस थ्रू विच यू कैन एक्चुअली टेक अटेंडेंस इन गूगल मीट। आपके पास बहुत सारे अदर एक्सटेंशंस भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे आपको एक्सटेंशंस मिल जाएंगे, बट अगेन वो सारे एक्सटेंशंस कई बार फंक्शनैलिटी उनकी अच्छी रहती है, कई बार नहीं रहती है, कई बार कुछ प्लगइन्स क्रैश कर जाते हैं, तो क्रैश होने के बाद आपको उसको अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्लगइन हटाना है, तो मैं यहाँ पर जाके उसको रिमूव फ्रॉम क्रोम कर सकता हूँ, अनपिन कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। तो बेसिकली मुझे यहाँ पर प्लगइन्स की ज़रूरत है, और वो प्लगइन्स जो हैं, जैसे मेरे केस में यहाँ पर प्लगइन ऑटोमेटिकली काम कर रहा है अटेंडेंस का। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्लगइन जो मुझे बहुत यूज़फुल लगा, और मैं डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ। पहले मैं कोई और प्लगइन यूज़ करता था, आजकल ये यूज़ करता हूँ, एंड बहुत अमेजिंग है, क्योंकि वो CSV फाइल मुझे बहुत डिटेल में अटेंडेंस का फॉर्मेट देती है। गुंजन मैम आपका माइक ऑन है, उससे थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। ओके If you can mute yourself. No, I'm doing it. Actually, I wanted to convey, but there was a connection problem. That is why I had. हाँ, I knew मैम, तभी मैंने आपको बताया कि मुझे पता था आपका कनेक्शन प्रॉब्लम आ रहा है। मैं सेल फोन से ऑपरेट कर रही हूँ, this was the only thing. Okay, I'm so sorry. It's okay, ma'am. So let me show you this to you in one more minute. थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या किया। बेसिकली हमने यहाँ से जब मेरे गूगल क्लासरूम जब मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे पास क्लास लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पर इरेज का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप उसको क्लास फील्ड, क्लियर क्लास फील्ड, तो ये पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर करंट क्लास टाइम आ रहा है कि कब स्टार्ट हुई, ये मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ इसलिए वो बटन चला गया। यहाँ पर डाउनलोड एज CSV का ऑप्शन आता है, तो जब आप करेंगे तो आपके पास डाउनलोड्स में वो CSV फाइल आ जाएगी। आप उसको खोलिए तो आपके पास इस तरीके की फ़ाइल आई। यहाँ पर इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास सारे अटेंडीज़ के नाम आ गए, बट ये हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। सो व्हाट वी डिड वाज, हमने यहाँ पर एक नई शीट निकाली, और उस नई शीट पे हमने यहाँ पर डेटा में गए, डेटा में गेट डेटा, या तो यहीं से आप देख सकते हैं, यहाँ पर गेट डेटा में जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास फ्रॉम टेक्स्ट या CSV का ऑप्शन आ जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन अभी के लिए, अगर अंटिल अनलेस आप डेटा साइंस में एक्सपर्ट है, बाकी सारे आपके काम के नहीं है, JSON और XML, बट आप यहाँ पर CSV के फॉर्म में आप इसको इंपोर्ट कीजिए, और आपके पास जो डाउनलोड्स में जहाँ पर भी आपकी फ़ाइल है उस पर जाइए, और आप उसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो आपको इंपोर्ट का ऑप्शन देगा, आप इंपोर्ट कीजिए।
वो आपकी सारी रोज़ को रन करके आपकी सारी रोज़ को डालेगा। देखिए यहाँ पर आपके पास आ गया सारी इन्फॉर्मेशन, आप इस डेटा को बस आप लोड कर दीजिए। लोड करके आपके पास ये पूरी डिटेल आ गई। यहाँ से आप नेम्स को कॉपी कर लीजिए अपनी एक्सेल शीट में, और गिवन कि वो कितनी देर तक आए हैं, कितनी देर उन्होंने अटेंड किया, उस हिसाब से आप उनको अटेंडेंस दे सकते हैं। चलिए, सो दिस वाज द प्लगइन ऑफ गूगल मीट अटेंडेंस। नाउ एक दो और प्लगइन्स हैं जो मैं यूटिलाइज़ करता हूँ, जो मुझे डेली बेसिस पे बहुत करता हूँ। लेट्स सी दोस प्लगइन्स एज वेल। एक जो बहुत अच्छा प्लगइन है वो है, लेट मी राइट इट हियर, वेब पेंट। ये वेब ड्रॉ एंड टेक्स्ट वाला एक प्लगइन है। इस प्लगइन का फ़ायदा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जब आप मेरे प्लगइन्स में देखिए तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर वेब पेंट। ये वेब पेंट का मैंने प्लगइन लगाया हुआ है, उसको पिन भी किया हुआ है। ये मेरा वेब पेंट का प्लगइन है। इसका आपको फ़ायदा दिखाता हूँ। मैं लॉ फैकल्टी की वेबसाइट पे जाता हूँ। एक और मेजर इशू जो मुझे यहाँ पर दिखा कि साइट सिक्योर नहीं है, दैट इज़ अ पेंडिंग इशू। देन ये देखिए, अब मैं जैसे ही मैंने यहाँ पर वेब पेंट पे गया तो वेब पेंट पे मेरे पास ये सारे ऑप्शंस एक साथ खुल गए। अब इससे मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं क्लास ले रहा हूँ और क्लास में मुझे कोई चीज़ दिखानी है, तो कोई चीज़ नोट करनी है, तो मैंने उसको इस तरीके से पेन से हाईलाइट कर दिया। फॉर एग्जांपल मुझे दिखाना है सिर्फ इसी चीज़ को हाईलाइट करना है, तो मैंने इस तरीके से इसको हाईलाइट कर दिया। तो इससे क्या होता है, कई बार ऑनलाइन टीचिंग में स्पेशली, जैसे इन माय सब्जेक्ट आई ट्राई टू रिलेट अ लॉट ऑफ थिंग्स विद करंट अफेयर्स। बजट आ रहा है तो बजट पुराना हो चुका है, तो आप आज की डेट में फिजिकल डेफिसिट या कोई इश्यूज़ हैं तो वो कैसे हैं, या फिर आपके केस में अगर कोई जजमेंट आ रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट की किसी जजमेंट पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपको ये आपको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, PDF डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से वेब पेंट का ऑप्शन यूज़ करना है और आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। और इसको आप सब कुछ डिलीट भी कर सकते हैं। आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है, सपोज़ मुझे यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो मैं वो टेक्स्ट भी लिख सकता हूँ। तो इससे टीचिंग का जो मेथड है एंड एक स्टूडेंट के लिए जो ईज़ है पढ़ने की, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बन जाती है। दैट इज़ वन थिंग। देन बहुत सारे और चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये चीज़ हाईलाइट करनी है, मुझे इसका स्क्रीनशॉट चाहिए, तो यहाँ पर एक कैमरा का बटन है, तो आप कैमरा का बटन लेंगे तो आपके पास ये पूरा स्क्रीनशॉट हो गया। अब इसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। तो बहुत सारी ऐसी फंक्शनैलिटीज़ हैं इन दिस प्लगइन वेब पेंट में। उसमें बहुत सारे फंक्शनैलिटीज़ हैं which are extremely useful for as a teacher, and then it enhances the students learning process as well. So this is something which I recommend very strongly that teachers should use. Then तो आपके लिए इसको मैंने आपको दिखाया कि आपको करना क्या है। इसके लिए आपको सिंपल एक प्लगइन पे जाना है, अगेन गूगल ये क्रोम वेब स्टोर के प्लगइन पे जाना है, आपको वेब पेंट टाइप करना है और यहाँ पर जैसे ऐड टू क्रोम आ रहा है, यहाँ पर आपका ऐड टू क्रोम आ जाएगा, उसको ऐड कर लीजिए और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास प्लगइन्स। ये जो साइन है लीफ का जो साइन है उसके साथ में आपको यहाँ पर प्लगइन्स मिल जाएंगे, उसको आप पिन कर सकते हैं। एक और प्लगइन जो मैं बहुत यूज़ करता हूँ वो है ग्रिड। आपको गूगल मीट ग्रिड व्यू का आपको बेनिफिट दिखाता हूँ। आप गूगल मीट ग्रिड व्यू पे जाएंगे तो देखिए ये गूगल मीट ग्रिड व्यू है, ठीक है। एंड इसको जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास एक ऐसा करके एक ऑप्शन आ जाएगा। अब उस ऑप्शन की ब्यूटी क्या है, वो ये है कि जब मैं अपना सेशन ले रहा हूँ तो मेरे पास सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं एक साथ, इफ़ यू कैन सी, आई कैन सी ऑल ऑफ यू हेयर, तो उसका ये बेनिफिट मेरे पास मुझे मिल जाता है कि मेरे पास सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। एंड अभी मैं बोल रहा हूँ इसीलिए मेरा नाम हाईलाइटेड है। अगर मेरा वीडियो चल रहा होगा तो मेरा यहाँ पर वीडियो हाईलाइटेड होगा। एंड इफ़ देयर इज़ एनीवन एल्स जो बोल रहा होगा या फिर कोई बोलना चाह रहा होगा तो यहाँ पर उनका जो आइकॉन है वो भी दैट गेट्स हाईलाइटेड। सो इन दैट वेज अगेन दिस इज़ अ वेरी गुड फंक्शन, इट हैज़ अ लॉट ऑफ गुड फंक्शनैलिटीज़ एंड इट इज़ वेरी यूजफुल टू कंडक्ट योर क्लासेस। तो आप क्लास को अच्छी तरह मैनेज कर सकते हैं एंड नॉट ओनली मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आपको किसी से क्वेश्चन पूछना है तो आप उठा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी के भी नाम से, तो ये दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल।
सो इसलिए ये 2 प्लगइन्स जो हैं मैं बहुत ज़्यादा रेकमेंड करता हूँ. उसके अलावा कुछ और प्लगइन्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं. ट्रांसलेट का प्लगइन मैंने जैसे बताया, यूजुअली मैं ट्रांसलेट का प्लगइन तब यूज़ करता हूँ जब मैं स्पेनिश या मैंड्रिन की कोई वेबसाइट पे होऊंगा एंड मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ से. तो जैसे मुझे चाहिए था कि केसेस पेंडिंग इन द जुडिशरी ऑफ चाइना, तो मुझे वो चाहिए था, तो मैं उसके लिए यूज़ कर रहा था ये कि कंपेयर करने के लिए कि इंडिया के अंदर इफ़ देयर आर 3 करोड़ केसेस पेंडिंग देन हाउ मेनी केसेस आर पेंडिंग इन चाइना. एंड जो मेरा रिसर्च एरिया है कि एआई की वजह से कितने केसेस कम, पेंडेंसी कितनी कम हो रही है. सो that ways again it can probably help you. Then let's move to the topic of Google Classroom. ठीक है, हम गूगल क्लासरूम पे आते हैं. ठीक है, क्लासरूम के लिए अगेन आपके पास जितने भी आइकन्स हैं, यहाँ पर जितने भी आइकन्स हैं वो सारे के सारे हर एक की अपनी एक फंक्शनैलिटी है. कैलेंडर मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ. मीट हमने देखा. चलिए मीट में मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ क्योंकि उसके बाद हम मीट पे नहीं आ पाएंगे वापस. जब मैं मीट पे जाता हूँ तो आप एक चीज़ कर सकते हैं. यहाँ पर वो मुझे कैमरा दिखाएगा नहीं क्योंकि फेल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे 2 कैमराज यूज़ हो रहे हैं साइमल्टेनियसली. सो व्हाट यू कैन सी हेयर इज़, जब आप मीट पे जाते हैं तो यहाँ पर आपके पास सेटिंग्स आएंगी. इन दो सेटिंग्स यू नीड टू चेक कि आपके पास माइक्रोफोन आपको कौन सा चाहिए, आपके स्पीकर कौन से चाहिए. देन वीडियो के लिए यहाँ पर आपको वीडियो कौन सा उसका चाहिए. मेरा कैमरा फेल इसलिए दिखा रहा है यहाँ पर बिकॉज माई कैमरा इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड बाय अनदर सॉफ्टवेयर. देन apart from that what you can also see is यहाँ पर रेजोल्यूशन. नाउ दिस रेजोल्यूशन जो है इसको आप 720 भी कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या आएगी, दिस इज 720. लोग इसको पिक्सल्स बोलते हैं, एक्चुअली पिक्सल नहीं होता है, प्रोग्रेशंस होते हैं. ठीक है, तो आपकी जो पूरी स्क्रीन होती है दैट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू पिक्सल्स, बट दिस पी डज नॉट स्टैंड फॉर पिक्सल, इट स्टैंड्स फॉर प्रोग्रेशन. तो जितना ज़्यादा प्रोग्रेशन करेंगे उतना ज़्यादा आप बैंडविड्थ यूज़ कर रहे हैं अपने इंटरनेट का, उतना अगर आपका किसी का इंटरनेट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसको उतना ही बफर करना पड़ेगा. इसीलिए इसको 360 पे भी रख सकते हैं. आई वुड रेकमेंड कि आप 360 पे ही रखें इसको. एंड इसमें एक और ऑप्शन बहुत जल्द आने वाला है, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है, नॉइज़ रिडक्शन का यहाँ पर आएगा. गूगल ने शायद से इंडिया में लेके नहीं आया, बट कई जगहों कई कंट्रीज़ में गूगल इज़ टेस्टिंग दैट नॉइज़ रिडक्शन. बेसिकली अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो हो सकता है पीछे पंखे की आवाज़ आ रही हो सकता है कोई बच्चा, जैसे आई हैव अ वेरी स्मॉल टॉडलर एट माई होम, तो उसकी आवाज़ आ रही हो, तो उसकी वजह से वो जो नॉइज़ कैंसलेशन है वो बेसिकली सिर्फ मेरी फ्रंटल वॉइस को लेगा, बाकी सारी जो एम्बियंट नॉइज़ है उसको सप्रेस कर देगा. तो वो एक ऑप्शन आप जब आप आएगा तो आप उसको ऑन नॉइज़ कैंसलेशन को आप प्रेस कर दीजिए. तो ये आपके गूगल मीट की कुछ फंक्शनैलिटीज़ और कुछ सेटिंग्स हैं जो आप चेक कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बेसिकली योर गूगल कैलेंडर्स. अब हम कैलेंडर पे आते हैं, सॉरी गूगल क्लासेस पे आते हैं, क्लासरूम पे आते हैं. तो सिद्धार्थ जी, आई हैव अ क्वेरी बिफोर वी प्रोसीड फर्दर. श्योर मैम. इसके लिए क्या नेसेसरी है कि क्रोम के थ्रू ही मेरे को ब्राउजर क्रोम ही रखना पड़ेगा? मैडम आप हाँ वंदना मैम, क्रोम इसलिए बेटर है क्योंकि क्रोम गूगल का प्रोडक्ट है और जितने भी आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर वो सारे गूगल के प्रोडक्ट्स हैं. तो इसीलिए क्रोम का जैसे राइट नाउ आई एम लिंक्ड टू द मीटिंग थ्रू सफारी, तो इसमें तो मेरे पास प्लगइन्स फिर नहीं आ पाएंगे. हाँ, फिर वो प्लगइन्स नहीं आ पाएंगे क्योंकि वो सारे प्लगइन्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्रोम के वेब स्टोर पे. इट्स बेसिकली कि अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं तो आपके पास ऐप स्टोर है, और अगर आप यूज़ करते हैं दूसरा नॉर्मल फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपके पास प्ले स्टोर है. तो ऐप्स आपके पास दोनों पे मिल जाएंगे, बट ज़रूरी नहीं है कि हर ऐप आपके पास हर चीज़ में मिल जाए. बेसिक फीचर्स के साथ और ब्राउजर्स पे चल पाएगा, और एडिशनल मुझे प्लगइन्स चाहिए तो मुझे नेसेसरली क्रोम स्टोर से. बिल्कुल. बट मैं अभी भी आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप गूगल के प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं तो आप क्रोम ही यूज़ कीजिए. व्हाट यू कैन डू इज़ आप क्रोम को डिवाइड कर दीजिए. मैं क्या करता हूँ, आप क्रोम को डिवाइड कर दीजिए. कैसे? आप यहाँ देखें तो मेरा क्रोम के आगे मेरा फ़ोटो बनी हुई है ऑफिशियल, और ये मेरा क्रोम बना हुआ है क्रोम पर्सनल. तो आप क्रोम के भी 2 पार्ट्स डिवाइड कर सकते हैं. तो एक आपका प्रोफेशनल क्रोम अलग हो जाएगा, आपका पर्सनल क्रोम अलग हो जाएगा. तो आप क्रोम को डिवाइड कर सकते हैं.
तो उससे अगेन आपकी प्रोफेशन, जैसे मुझे कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है तो मैं कभी भी भूल के भी मुझे पता है कि मुझे इसमें इस आईडी में नहीं करनी है, क्योंकि ये मेरा प्रोफेशनल आईडी है, मैं इससे अपनी सारी रिसर्च इस आईडी से कर सकता हूँ। बट मुझे अपनी पर्सनल ईमेल चेक करनी है, मुझे अपना पर्सनल बैंक वेबसाइट जाना है, तो मैं अपने प्रोफेशनल आईडी से नहीं, मैं अपने पर्सनल क्रोम से लॉगिन करता हूँ। वो ट्रैक होना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है एज सच, बट मैं वो प्रिवेसी वाले इश्यूज़ में आऊँगा कि कैसे ट्रैक हो सकती हैं। देयर इज़ समथिंग कॉल्ड गूगल वॉल्ट। मैं एक्चुअली आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर एक गूगल वॉल्ट का ऑप्शन आता है, या एडमिनिस्ट्रेटर के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं। एडमिन कंसोल जिनके पास होगा, जो आपके कॉलेज में एडमिन कंसोल होगा, उनके पास भी ये ऑप्शन आ जाएगा कि ये वॉल्ट की इश्यूज़ क्या हैं, वॉल्ट की कंडीशंस किसको देनी हैं। तो ये सारे इश्यूज़ अभी मेरे पास वॉल्ट में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं एडमिन कंसोल में नहीं हूँ, मेरा ये पर्सनल वो चल रहा है। तो जब आएगा तो मैं बैकअप, सारी मेल्स के बैकअप यहाँ रख सकता हूँ। तो सपोज़ एडमिन ने अपने सारे सर्वर की सारी मेल्स जो हैं यहाँ रखी हुई हैं, तो मैं किसी की भी मेल में जाके चेक कर सकता हूँ कि क्या क्या आउटगोइंग मेल्स हुई हैं। दैट इज़ ऑप्शन। और ये तो तब है जब मैं IT एक्ट का कोई वायलेशन नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं IT एक्ट का वायलेशन करने लग जाऊँ तो मैं थर्ड पार्टी ऐप्स बहुत सारी लगा सकता हूँ, जिससे मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा किसी के बारे में भी। तो दिस इज़ आई कम बैक टू दिस लेटर, पर वो प्रिवेसी के इशूज़ पे आई स्पीक, बट मोर देन दैट लेट्स not deviate from our basic theme, and this basic theme is basically having, अभी जो हम बात कर रहे हैं गूगल क्लासरूम की। ना गूगल क्लासरूम की फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो क्या है कि अगर सपोज़ आपको क्लास करनी है तो आप क्या करिए, यहाँ पर क्रिएट क्लास का, आप जैसे गूगल क्लासरूम में जाएंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ एक प्लस का साइन आएगा, प्लस के साइन पर जाएंगे तो ज्वाइन द क्लास, जो स्टूडेंट्स को करना है, या क्रिएट अ क्लास आपने क्रिएट करी। मैंने कहा कि दिस इज़ टेस्ट 1, ठीक है, सेक्शन वगैरह रूम कुछ भी डाल सकता हूँ। क्रिएट मैंने करी, वो 1 मिनट लगाएगा क्रिएट करने के लिए। कैन यू सी, यहाँ पर जो मैंने टेस्ट, ये मैंने क्रिएट करा टेस्ट, तो ये मेरी क्लास बन गई। अब मैं बच्चों को कैसे बुला सकता हूँ, मैंने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को ये क्लास का कोड दे दिया, ठीक है, ये क्लास के कोड के साथ स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पर आ जाएंगे कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया। लेट मी शो यू माई क्लास फर्स्ट। यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ नहीं आएगा जब तक मैं आपको अपनी क्लास नहीं दिखाऊंगा। ये देखिए, ये मैं एक सेक्शन पढ़ा रहा हूँ, ये मैं जैसे ये आपका ये क्लास बनी, वैसे मेरी ये वाली क्लास है। अब मैंने अपनी क्लास खोली, तो मैंने क्लास खोली तो मेरे पास स्ट्रीम का ऑप्शन आता है, यहाँ क्लास वर्क का ऑप्शन आता है, पीपल का आता है और ग्रेड्स का आता है। तो यहाँ पर आप बेसिकली एवरीथिंग दैट यू वांट टू मैनेज फॉर योर क्लास, अपार्ट फ्रॉम टेकिंग द क्लास, जितना भी मटेरियल एक्सचेंज है वो सारा आप यहाँ से कर सकते हैं। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स को आपको बस ये कोड देने की ज़रूरत है, जिसके पास ये कोड है वो क्लास ज्वाइन कर सकता है ये, ठीक है। एंड उसके बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर आप देखिए पीपल, तो यहाँ पर आपके पास सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अगर आपको स्टूडेंट्स, अगेन सपोज़ मैं लोगों को इनवाइट नहीं भेजना चाहता, मैं इंडिविजुअली लोगों को ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास प्लस का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आप या तो यहाँ पर लिंक भेज दीजिए उनको, या फिर उनके ईमेल टाइप कर दीजिए। अगेन ईमेल टाइप करने का सेम तरीका, सेम प्रोसेस अगेन वही रहेगा कि या तो आप एक्सेल शीट से आप अगेन पूरे की पूरी लिस्ट लीजिए, उसको कॉमास में कन्वर्ट कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, तो उनको इन्वाइट चला जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको ये स्टूडेंट्स की यहाँ पर लिस्ट मिल जाएगी, और ये स्टूडेंट्स आपकी क्लास के स्टूडेंट्स हैं। अगर आपको टीचर्स, सपोज 2 टीचर्स मिलके एक क्लास ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप टीचर को भी इनवाइट कर सकते हैं, तो 2 टीचर्स की एक पर्टिकुलर क्लास भी हो सकती है। देन कमिंग टू यहाँ पर इसकी सेटिंग पे जाते हैं। ये देखिए, अब इसकी मैं सेटिंग पे गया। सेटिंग पे मैं गया कैसे, यहाँ पर गियर का साइन है, तो आप इस गियर को क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी सेटिंग खुल जाएंगी। तो जब सेटिंग खुल जाएंगी तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा कि इनवाइट लिंक क्या है, तो यहाँ पर आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कोड का ऑप्शन आ गया, यहाँ पर डिस्प्ले कोड का ऑप्शन आ गया कि ये कोड क्या है, ये आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर आपको स्टूडेंट्स के साथ क्लास, अगर ये मीट जो आई थिंक इफ आई एम नॉट फॉरगेटिंग, डॉक्टर क्षितिज कह रहे थे शायद से कि यहाँ पर डॉक्टर अजय कह रहे थे कि यहाँ पर क्लास जो है गूगल मीट से कैसे, गूगल क्लासरूम से कैसे हो सकती है। तो बेसिकली आप यहाँ पर मीट का जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप इसको विजिबल, ये जो मीट का ऑप्शन है इसको आप रीसेट कर दीजिए, या जैसे इस केस में मैंने अलाउ करा हुआ है, तो ये इसको आप कॉपी कीजिए
और कॉपी करके स्टूडेंट्स को दे दीजिए, तो यही स्टूडेंट्स जो हैं जो आपके क्लास का पार्ट हैं वो उस क्लास को एंटर कर सकते हैं। इसको आप विजिबल टू स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, अभी तो मैंने इनविजिबल करा हुआ था स्टूडेंट्स को, बट आप इसको विजिबल भी कर सकते हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी कैलेंडर से क्लास ले रहा हूँ इसलिए मुझे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यू कैन ट्राई दिस ऑप्शन एज वेल, देयर इज नो हार्म। अगेन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसके लिए आपको हमेशा गूगल क्लासरूम पे जाके आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, उस केस के अंदर आपको कैलेंडर से आके स्टार्ट करनी पड़ेगी। इनफैक्ट जब आप यहाँ से भी क्लास डालेंगे तो भी आपके पास कैलेंडर पे आ सकती है क्लास, तो दैट ऑल्सो आई शो यू कि वो कैलेंडर पे कैसे आएगी। ठीक है, अब ये ग्रेडिंग का आपका तरीका है, तो पूरा ग्रेडिंग का आपको जो मेथड है, टोटल पॉइंट्स आपको कैसे करने हैं, दैट एंटायर प्रोसेस इज़ देयर। लेट मी शो यू, ये सर्टन सेटिंग्स हैं जो हमने करी हुई हैं। लेट मी शो यू कि इसको आप बेसिकली आप यूज़ कैसे करेंगे। यूज़ करने के लिए आप क्या कीजिए, यहाँ पर आपके पास गूगल कैलेंडर का ऑप्शन है, आपके पास ड्राइव फोल्डर है आपके पास। बाय द वे जो आपके पास इंस्टीट्यूशनल आईडी से जो आपको गूगल ड्राइव मिल रही है उसकी अनलिमिटेड स्टोरेज है, तो आप उसको फुल यूटिलाइज़ कीजिए, बट अगेन यूटिलाइज प्रोफेशनल काम के लिए। तो यहाँ पर जब मैं क्रिएट का ऑप्शन पे जाता हूँ तो क्रिएट के लिए मुझसे पूछता है कि आपको असाइनमेंट बनाना है, क्विज़ बनानी है, क्वेश्चंस बनाने हैं, मटेरियल देना है या कोई पोस्ट रीयूज़ करना है। तो सपोज लेट्स सी कि मैंने क्या क्या करा हुआ है। मैं बजट पे जाता हूँ, मैंने एक टॉपिक बनाया हुआ है यूनियन बजट। तो यूनियन बजट में मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ तो मैंने यहाँ पर पोस्ट करी हुई हैं अपने वीडियोस। ये देखिए, ये मेरे 3 वीडियोस हैं जो स्टूडेंट्स को एज अ पार्ट ऑफ प्री लेक्चर मेरे लेक्चर अटेंड करने से पहले, ये आपको सबसे पहले आपको ये मेरा यूट्यूब का लेक्चर आपको देखना है, और उसके बाद जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड करा वो लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो वो भी आपका गूगल मीट से जो ऑप्शन आएगा, गूगल मीट से आपके पास ऑप्शन ऑफ रिकॉर्डिंग भी आता है। ठीक है, वो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन कैसे आएगा ये भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो 3 पिन्स आप इसको दबाएंगे तो यहाँ पर मेरे पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा क्योंकि मैं इसका होस्ट नहीं हूँ इस मीटिंग का, बट नहीं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिकॉर्डिंग का। तो आप रिकॉर्डिंग जैसे ही उसको स्टार्ट करेंगे तो यह रिकॉर्डिंग आपके जीमेल पे भी आपके पास ऑप्शन आपके पास आ जाएगा कि आपकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और ये रिकॉर्डिंग पहुँचेगी कहाँ पर, ये रिकॉर्डिंग जाके पहुँचेगी आपकी ड्राइव में। ये देखिए, मैं आपको ड्राइव में दिखाता हूँ कि आपकी रिकॉर्डिंग पहुँच गई है। तो मैं अपनी जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सबको मैं रिकॉर्ड करता हूँ। यहाँ पर मीट रिकॉर्डिंग के नाम से आएगा, आपके पास एक फ़ोल्डर बनेगा। ये देखिए, ये मेरी आज तक की सारी क्लासेस हैं जो मैंने रिकॉर्ड करी हुई हैं। ठीक है, और इन रिकॉर्डिंग्स को मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लेता हूँ। और शेयर कैसे करता हूँ, मैं सिंपल क्लासरूम पे जाता हूँ। ठीक है, और क्लासरूम पे जाके मैं स्टूडेंट्स के साथ, सपोज जैसे ये है तो उनके साथ शेयर कर लेता हूँ। दिखाता हूँ, क्लास वर्क में गया, मैं यहाँ पर क्रिएट पे गया, यहाँ पर मटेरियल पे गया, तो मटेरियल पे अगेन मटेरियल पे मैं मटेरियल का नाम डालूंगा। यहाँ पर जो भी XYZ मटेरियल का नाम है, मैं इसको करूँगा नहीं क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स के पास जैसे ही मैं पोस्ट करूँगा मेरे सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन चली गई कि ये मटेरियल ऐड हुआ है। और मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ, सपोज़ मेरे पास गूगल ड्राइव से कोई चीज़ चाहिए, मुझे यूट्यूब से कोई अपना वीडियो डालना है, मुझे कोई फाइल डालनी है अपने कंप्यूटर से, सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एंड उसके बाद किस टॉपिक के अंदर डालना है वो डाल सकते हैं, कौन सी क्लास के लिए डालना है वो सारे आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे हमने टेस्ट 1 करा, उसके लिए किस स्टूडेंट्स के लिए करना है तो वो भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि सारी स्टूडेंट्स को करना है कि लिमिटेड स्टूडेंट्स को करना है। तो जैसे ही आप ये मटेरियल क्रिएट करेंगे आपके पास यहाँ पर ये इस तरीके से मटेरियल का एक ऑप्शन आ जाएगा। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स बच्चों के साथ शेयर किए हुए हैं, ये मेरा PDF फाइल शेयर हुआ है। मैंने एक क्विज़ स्टूडेंट्स के साथ रखी हुई है, वो क्विज़ यहाँ पर आ जाती है, ये देखिए। और 2 स्टूडेंट्स ने टर्न इन करा हुआ है क्विज़ अपना। तो बेसिकली क्या है, मैंने एक क्विज़ रखी है और क्विज़ 10 पॉइंट्स की क्विज़ है। यहाँ पर मेरे पास आ जाता है कि कितने बच्चों ने क्विज़ टर्न इन का मतलब बेसिकली होता है दे हैव रिटर्न द क्विज़, दे हैव मार्क द क्विज़। और ये सारे बच्चों को असाइंड है बट इन्होंने मार्क नहीं करा हुआ क्विज़ को। तो इस तरीके से मेरे पास ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं इंटरनल कैलकुलेशन करने के लिए, या फिर स्टूडेंट्स का जानने के लिए उनको कितना समझ में आया वो लेक्चर। अगर आपको कोई टेस्ट लेना है या सिंपल कोई क्विज़ लेनी है, असाइनमेंट रखना है, तो यहाँ पर बच्चे उनको या तो उसको बच्चे क्या कर सकते हैं, या तो आपने इंटरेक्टिव रखा हुआ है तो वहीं टाइप करके आपके पास आ जाएगा। लेट्स जस्ट सी वन ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। मैं क्विज़ का ही एग्जाम्पल देख लेता हूँ। व्यू असाइनमेंट टर्न्ड इन, तो ये देखिए यहाँ पर जब मैं जाऊँगा तो स्टूडेंट्स के मेरे पास
ये स्टूडेंट ने क्या किया, इस स्टूडेंट ने आंसर जो है क्या कहते हैं भरे भी थे और उसके बाद स्कैन भी करके भेज दिया मुझे पूरा। तो स्कैन करके इस तरीके से मेरे पास आ गया ऑप्शन, मैं इनको करेक्ट करके यहाँ पर रिटर्न कर सकता हूँ स्टूडेंट को कि रिटर्न करना है, और रिटर्न करके मार्क्स देने हैं, ग्रेड जो देना है मैं वो ग्रेड दे सकता हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी ऑप्शंस मेरे पास हैं कि मुझे 10 में से कितने मार्क्स देने हैं, ये ऑप्शन दूसरी स्टूडेंट ने ये दिया है। उसने कोई फाइल अटैच नहीं करी हुई है और डिस्कशन है। सो दिस इज़ बेसिकली अ मेथड, this is basically a method on how you can actually utilize this entire Google Meet for a lot of things. तो आप ग्रेड्स पे जाएंगे तो यहाँ पर आप ग्रेड्स, हर बच्चे को जो ग्रेड, जैसे किसी स्टूडेंट ने अगर सबमिट किया है तो मैं उसका ग्रेड यहाँ पर डाल सकता हूँ। सिर्फ उसी को पता करना है तो वो भी ऑप्शन है, किसी को पूरी क्लास को पता चल जाए, दैट ऑप्शन इज़ ऑल्सो अवेलेबल। तो बेसिकली अगेन कमिंग टू द पॉइंट दैट आप इंटीग्रेट तीनों चीज़ों को कर सकते हैं, गूगल कैलेंडर को, गूगल क्लासरूम को एंड गूगल मीट को। तो ये तीनों इंटीग्रेटेड तरीके से चलता है, प्लस गूगल ड्राइव। तो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड जी सूट, क्योंकि ये सारा का सारा जो है एक साथ पूरा आर्किटेक्चर चलता है, और इन सबको आप एक साथ यूटिलाइज करके चलेंगे तो और ज़्यादा एफिशिएंट एंड और ज़्यादा अच्छी तरीके से स्ट्रीमलाइन हो सकती है योर टीचिंग एज वेल एज फॉर स्टूडेंट्स। they're able to grasp things can be much easier, and in fact that is the future. This is how the future will pan out of education. So a silver lining thrown out by COVID-19. Then उसके बाद यहाँ पर आपके पास सारे क्लासरूम्स आ गई कि कौन कौन सी मेरी क्लासरूम्स हैं, उनको आप मैनेज कर सकते हैं। ये जो कैलेंडर है बाय द वे, ये आपका कैलेंडर जो होगा वो आपका क्लासरूम का कैलेंडर है, वो आपका गूगल कैलेंडर नहीं है। तो अगर आप क्लासरूम में कोई असाइनमेंट रखते हैं, कोई टेस्ट रखते हैं, तो वो सिर्फ आएगा यहाँ पर। आपका ये जो कैलेंडर है ये क्लासरूम का कैलेंडर है। सो दिस इज़ नथिंग टू डू विद द गूगल कैलेंडर। तो दोनों में आपको डिफरेंस, एक थोड़ा स्लाइट डिफरेंस जो है वो यहाँ पर है कि जो आप डेडलाइंस देंगे वो यहाँ पर कैलेंडर में, क्लासरूम कैलेंडर में आएगा रादर देन गूगल कैलेंडर में। So this is the other aspect that I wanted to cover. Now let me quickly cover the issue of attendance, ठीक है, and then that of privacy, ठीक है। So let us see the issue of attendance, कि attendance कैसे करनी है आपको। ये मैं शीट आपको ऑल्दो यूनिवर्सिटी में मेजर ऑलमोस्ट सारे टीचर्स के पास ये लिस्ट, ये एक्सेल शीट है। इसमें क्या करना है आपको, मैं आपको ब्लैंक शीट दूंगा, और ब्लैंक शीट में आपको यहाँ पर अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के, अपने क्लास के स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिखने हैं, यहाँ पर उनके नाम पेस्ट करना है अल्फ़ाबेटिकली करने के लिए आप डेटा से में जाके आप उसको सॉर्ट भी कर सकते हो। तो डेटा में आप जब आप सॉर्ट करोगे A to Z तो वो सारे के सारे सॉर्ट हो जाएंगे। देन जब आपके सारे आ गए, और फिर उसके बाद जो हमने गूगल मीट से, जैसे हमने यहाँ से अटेंडेंस ली थी, तो अगर यहाँ पर अक्षदीप नागल जो है अगर मेरे स्टूडेंट हैं तो, और यहाँ पर प्रेजेंट भी थे, तो मैंने यहाँ पर उनके आगे P लगा दिया। माइंड यू, जब आप यहाँ पर P या A लगाएंगे, अगर आप मेरी शीट यूज़ कर रहे हैं तो आप सिर्फ कैपिटल लेटर्स यूज़ करेंगे, आप स्मॉल लेटर्स नहीं यूज़ करेंगे। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर इफ़ यू सी दी फॉर्मूलाज, यहाँ पर मैंने काउंट इफ का फॉर्मूला लगाया हुआ है, एंड काउंट इफ द नंबर ऑफ पीज इन फ्रॉम E3, दिस इज E3 सेल टिल E23, तो वो सारे पीस गिनेगा। सपोज यहाँ पर मैं P लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं P लिख देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, ये देखिए। और फिर अगर मैं किसी को एब्सेंट मार्क करता हूँ तो ये देखिए यहाँ एब्सेंट में A आ गया, फिर एब्सेंट मार्क करता हूँ, एब्सेंट अपने आप में ही रेड आना शुरू हो जाएगा। मैंने कलर कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ से होती है, मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करी हुई है पूरे के पूरे शीट की। जब भी जहाँ पर भी आप A लिखेंगे वो अपने आप रेड कर देगा। आपके केस में एक्स्ट्रा करिकुलर्स नहीं होते, क्योंकि नॉर्मल कॉलेजेस में एक्स्ट्रा करिकुलर्स होते हैं, उसके लिए अटेंडेंस देनी होती है, तो मैंने उसको X मार्क करा हुआ है, तो X मार्क करके वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स दे देता है। और कई बार मेडिकल के केसेस भी होते हैं, तो M टाइप कर दीजिए, तो मेडिकल का केस भी, मेडिकल का फाइनल उसमें आपको दिख जाएगा एंड में। तो ये बेसिकली जैसे आपने डेट्स आप ऊपर डाल दीजिए, सारी की सारी डेट्स एक एक करके, ठीक है। आप सबके अटेंडेंस डाल दीजिए। ये आपके पास मंथली टोटल, यहाँ पर मैंने 20 कॉलम डाले हुए, क्योंकि महीने में अप्रॉक्सीमेटली 20 ही क्लास होती हैं एक पर्टिकुलर सेक्शन की। और यहाँ पर टोटल उस महीने में उस स्टूडेंट के कितने प्रेजेंट हैं, कितने उसके एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं और कितने एब्सेंट हैं। और नीचे अगर आप देखेंगे, इस शीट में नहीं है, मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। नीचे अगर आप देखेंगे तो नीचे भी आपके पास टोटल प्रेजेंट एंड एब्सेंट आ जाएगा। इससे भी आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं
मेरी क्लास में 39 स्टूडेंट्स हैं, तो मुझे पता है कि कितने प्रेजेंट हैं और कितने एब्सेंट हैं। तो ये भी मेरे जो नई शीट है उसके अंदर ये टोटल एब्सेंट और प्रेजेंट भी आ रहा है, डेली बेसिस पे कितने स्टूडेंट्स जो हैं एब्सेंट या प्रेजेंट आ रहे हैं। तो जब आप ये यूज़ करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर मेरे पास टोटल आ गया, फिर आपके पास ऐसे ही आप सितंबर का डालिए, अक्टूबर का डालिए, और उसके बाद ये आपके पास ग्रैंड टोटल का एक फॉर्मूला मैंने लगाया हुआ है। तो वो आपको बेसिकली बताया देगा पूरे सेमेस्टर में ये स्टूडेंट कितनी बार प्रेजेंट हुआ, कितने बार उसके एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं और कितनी बार एब्सेंट हुआ। हमारे पास टोटल ECA प्लस अटेंडेंस कितनी है, क्योंकि ये हमारा अटेंडेंस का बेस रहता है। मेडिकल मैं डिनोमिनेटर से हटा देता हूँ, ठीक है, और ये मेरे पास टोटल क्लासेस माइनस मेडिकल होगा और ये मेरे पास अटेंडेंस हो गई। अब अटेंडेंस के मार्क्स कैसे लगा रहा है, ये फॉर्मूला ऑल्दो थोड़ा टेक्निकल है, जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया, बट बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है। मैथ्स और इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, सिंपल इंग्लिश को हम टेक्निकल बना देते हैं, क्योंकि जितना टेक्निकल होगा उतनी आम पब्लिक को समझ नहीं आएगा। सेम एज ऑल प्रोफेशनल फील्ड्स, इसीलिए लोग शायद से लॉ से भी डरते हैं। तो यहाँ पर इफ़ यू सी कि अगर 85% से ज़्यादा किसी का अटेंडेंस है तो मैं 5 मार्क्स देता हूँ। आपके केस में जैसा आपका जैसे मूट कोर्ट जो आपका पेपर होता है उसमें शायद से अटेंडेंस होती है, तो आप अपना फॉर्मूला मुझे आप मेथड बता दीजिए, मैं आपका फॉर्मूला चेंज करके आपको दे दूँगा। और फिर उसके बाद 85 से 80 के बीच में 4 मार्क्स, ऐसे ही 80 से 75 के बीच में 3 मार्क्स और 66 से पीछे 0 मार्क्स। तो सपोज़ आपको किसी को डिटेन करना है, तो डिटेन करना अगर किसी के 70% से कम है तो अपने आप ही यहाँ पर आपको पास आ जाएगा कि ये बच्चे जो है उनकी अटेंडेंस कम है, जैसे इसका 0% है, इन बच्चों को मुझे डिटेन करना है। तो अटेंडेंस के मार्क्स आ गए, जस्ट इन केस आपको अटेंडेंस के मार्क्स चाहिए, आपने टेस्ट के मार्क्स डाल दिए, PPT के मार्क्स डाल दिए, आपके पास टोटल 25 में से इंटरनल्स आ गए। तो ये जो तरीका है ये मैं पिछले 2 सेमेस्टर से कर रहा हूँ। इसको मैं और अच्छे तरीके से ऑटोमेट करना चाहता हूँ, बट मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है कि मैं इसको पाइथन से अगर मेरे पास पूरा यूनिवर्सिटी का डेटा हो तो मैं उसको पाइथन से इंपोर्ट करके उसके बहुत अच्छे मैट्रिक्स बना सकता हूँ टैब्लू के थ्रू, और पूरा का पूरा अटेंडेंस का स्ट्रीमलाइन कर सकता हूँ। बट अगेन लिमिटेशंस हैं ऑफ डेटा, लिमिटेशंस हैं ऑफ माई एक्सेस टू डेटा ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो क्योंकि हमारे पास बहुत छोटी रोज़ है, हमारे पास टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम 100 स्टूडेंट्स होंगे, बट सपोज आपके पास 2 लाख स्टूडेंट्स हैं, 2 लाख स्टूडेंट्स को एक्सेल कर ही नहीं पाएगा। तो उसके लिए आपको यू नीड पाइथन या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए और बहुत इजी है, उसके अंदर भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेम चीज़ सिंपल कंप्यूटर हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से सेम चीज़ हो सकती है। तो ये मैं एक बार आई थिंक जय के साथ बात करके आई विल प्रॉब्ली कोऑर्डिनेट कि आपका अटेंडेंस का कैसा आपका सिस्टम रहता है, मैं उसके साथ ये फॉर्मूलाज चेंज करके आपको दे दूँगा। देन फाइनल एस्पेक्ट दैट आई वांटेड टू कवर सिंस आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम एज वेल वाज दैट ऑफ प्रिवेसी। सो हमने क्या क्या बात कर ली, हमने साइन इन के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया है, हमने डिस्प्ले पिक्चर एंड सिक्योरिटी पैरामीटर्स चेक कर लिया, आपको चेंजिंग पासवर्ड के बारे में मैंने बता दिया, सेंडिंग इनवाइट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि सेंडिंग इनवाइट कैसे करना है, आपको उसको CSV में कैसे कन्वर्ट करना है, क्लास की सेटिंग कैसे करनी है, गूगल मीट की कॉन्फ़िगरेशंस मैंने आपको बता दी, ऑडियो और वीडियो कॉन्फ़िगरेशंस कैसे हैं, मैंने आपको प्लगइन्स बताया कि आपको अटेंडेंस का प्लगइन है, आपके पास ग्रिड का प्लगइन होना चाहिए, वेब पेंट का प्लगइन है, ट्रांसलेट का प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट रिसोर्स शेयरिंग थ्रू क्लासरूम। देन एक्सेल मैंने आपको बताया कि एक्सेल शीट आप मेरी डाउनलोड कर लीजिए, डिटेल्स आप स्टूडेंट्स के फिल इन कर लीजिए। CSV टू एक्सेल हमने देखा कि वो जो हमने गूगल मीट से देखा था कि आप उसको डेटा को लोड करेंगे और किस तरीके से आप अटेंडेंस दे सकते हैं। फिर मैंने आपको ये बताया कि P, A, X या M आप मार्क करेंगे। आप बस कलर्ड कॉलम्स को प्लीज़ मत चेंज कीजिएगा, क्योंकि ये सारे कॉलम्स के अंदर फॉर्मूलाज लगे हुए हैं, एंड इफ़ यू अल्टर द फॉर्मूला तो आपका जो कैलकुलेशन है वो ठीक नहीं आएगा। देन let's talk about institutional privacy issues. This is something which will automatically be very close to your heart because you are representing the legal fraternity. So इसमें मैं आपको अपने ID का वो जो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर गूगल क्या बोल रहा है। गूगल बेसिकली आपको पहले ही वार्न कर रहा है कि ये जो डेटा है ये शेयर किया जा सकता है। Now you should consult your organization's privacy policy. Now if you see the privacy bill,
उसमें डेटा फिड्यूशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो बेसिकली जो एडमिन कंसोल आपके कॉलेज में संभाल रहे हैं उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि अगर कहीं पर भी डेटा लीक होगा तो पर्सनल डेटा, क्योंकि यहाँ पर पर्सनल एंड प्रोफेशनल बोथ डेटा की के बारे में बात होगी, तो कहीं पर भी कुछ डेटा आएगा प्लस स्टूडेंट्स का आपके पास डेटा आएगा, कुछ डेटा लीक होता है तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिड्यूशरी की हो जाती है, विच इन दिस केस विल बी द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसीलिए आई वुड रेकमेंड, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप एक ओपन प्राइवेसी पॉलिसी रखिए, कि आप पहले ही हाईलाइट करके रखिए कि दीज आर द टर्म्स एंड कंडीशन एंड वी विल नॉट यूज़ द मेटा डेटा फॉर एनी अदर पर्पस अदर देन फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द एजुकेशन पर्पस। तो आप अपनी तरह से एक रेड हेरिंग आप यूज़ कर सकते हैं। देन ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। व्हाट आर द गुड प्रैक्टिसेस फॉर यूजिंग इंस्टीट्यूशनल आईडी? आप सेपरेट ब्राउज़र रखिए। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर देखिए, ये आपको मुझे एक ब्राउज़र दिख रहा होगा और ये मेरा एक आपको दूसरा ब्राउज़र दिख रहा होगा। ये मेरा पर्सनल ब्राउज़र है, ये मेरा प्रोफेशनल ब्राउज़र है। तो आप दो अलग अलग ब्राउज़र्स यूज़ करिए, दैट इज़ बेटर अप्रोच। आप इजीली अंडरस्टैंड, आपको ध्यान में रखेगा कि मैं कोई वेबसाइट खोल रहा हूँ तो मैं पर्सनल ईमेल से खोल रहा हूँ, पर्सनल ब्राउज़र से खोल रहा हूँ या प्राइवेट से खोल रहा हूँ। मंथली आप सिक्योरिटी रिव्यू कर लीजिए, आप अपना मंथली पासवर्ड या बाई मंथली पासवर्ड चेंज कर लीजिए, दैट इज़ मच बेटर। अनदर इशू इज़ आप पब्लिक नेटवर्क्स को ट्रस्ट मत कीजिए, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल दिल्ली गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल अगर वाईफाई देता है, तो अगर आप प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, कुछ बैंकिंग कर रहे हैं, कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का काम हो रहा है, तो वो पब्लिक नेटवर्क्स के थ्रू नहीं होना चाहिए। सो अगर जस्ट इन केस आपको पब्लिक नेटवर्क यूज़ करना भी पड़ रहा है, तो आई वुड रेकमेंड कि आप इंस्टॉल कीजिए VPN। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आपके पास होना चाहिए। वो आपको बेसिकली मास्क कर देता है कि आपका डेटा शेयरिंग जो आप वाईफाई पे कर रहे हो वो आपको मास्क कर देगा, वो आपको आपकी IP एड्रेस भी मास्क कर देगा। जैसे मैंने बताया कि अगर मैं VPN यूज़ कर रहा हूँ, नो वन विल बी एबल टू ट्रैक until unless किसी के पास इंट्रूसिव टेक्नोलॉजी है। If someone from the security services wants to decrypt it, तो कर सकते हैं, बट यूजुअली जो नॉर्मल आम पब्लिक है वो नहीं कर पाएगी। एंड द लास्ट इशू इज़ दैट ऑफ कॉपीराइट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू बहुत सारे FDPs में उठता है। मेरी क्लासेस के जब मैं FDP के या कोई भी सेशन लेता हूँ, कि हम क्या मटेरियल शेयर कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स के साथ हम शेयर कर सकते हैं। अगेन, यू बीइंग फ्रॉम द लीगल फर्टर्निटी यू वुड नो बेटर, बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है 2017 का जो जजमेंट था राजेश्वरी वर्सेस ऑक्सफोर्ड प्रेस, that clearly states, Justice Endlaw clearly states, of the Honorable Delhi High Court, he clearly states that if only portions relevant to the course are shared, then you can probably do that, and if it's not for profit purpose। और ये जो केस था वो राजेश्वरी फोटोकॉपी, जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के फोटोकॉपी उन्होंने जीता था। एंड ऐसे ही एक्सेप्शंस जो है वो आई थिंक जो मैंने पढ़ा IT एक्ट है उसके अंदर भी ये एक्सेप्शन, कॉपीराइट एक्ट के अंदर भी ये एक्सेप्शन है। बट अगेन, प्रोफेसर्स फ्रॉम IPR would know better. I am just a novice. I just have interest in this field. तो इसीलिए मेरा थोड़ा बहुत ये रिसर्च रहा है, मैं लोगों को ये एडवाइस करता हूँ। So with this I would like to thank you all, and I am more than happy to take questions, and then probably मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा एंड में। Yes ma'am, can you speak? Yes. Yes. Thank you so much for your presentation. I'll just quickly give my question. Yes ma'am. You tell us in steps that if I have to do my live teaching, I go to Google Meet. If I want to use Blackboard, if I want to share my PPT, if I want to do any video or audio sharing, just 1, 2, 3 steps summarize. Okay. So if you want to share your videos, you want to share any audio, you want to share any PPT, what I would recommend is or use Blackboard. उसके लिए मैम एक Jamboard करके है। What you can do is आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको पास यहाँ पर एक Jamboard मिल जाएगा। तो यहाँ पर Jamboard, जब आप Jamboard पे जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास एक स्क्रीन आ जाएगी, बेसिकली एक बोर्ड आ जाएगा। उस बोर्ड पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप पेन से आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी पिक्चर यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। whatever you think you want। Thank you। और इसको Now just tell us the steps 1, 2, 3, 4 how to proceed. The steps are, ma'am, first make a class. For example, Yes, this is my class. Then go to classwork. Yes. Then create के बाद यहाँ पर मटेरियल का ऑप्शन आ जाएगा मैम। मटेरियल में आप जो चाहे आप डाल सकते हैं यहाँ पर ऐड से।
No, that is okay. But how to take live class? लाइव क्लास तो मैम आप या तो यहाँ से ये गूगल मीट का ये लिंक शेयर कर सकते हैं. All right. Okay. Thank you. Done. Understood. डॉक्टर अजय. Yeah, Mr. Rathod, Ajay. Yes sir. Now, I wanted to ask you that attendance which we are to import through that CSV in that CSV format into Excel sheet, and ultimately we copy it against the names. Now that composition keeps on changing from class to class. Some people will be absent, some people will be present. So that means you have to tally with names every day and write B or A. Or there is any mechanism by which that can be done? Sir, there is a mechanism. I used it. उसमें क्या है, VLOOKUP, there's a formula called VLOOKUP in Excel. बट उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि मुझे पूरा का पूरा, जहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ द प्रॉब्लम दैट यू विल फेस. ये जो पूरा का पूरा यहाँ पर ये सारे के सारे P और A हैं, इन सब की जगह पर यहाँ पर मेरा VLOOKUP का फॉर्मूला होगा. अब प्रॉब्लम क्या आती है कि मैंने वो ट्राई किया, बट वो क्या करेगा, यहाँ से नाम को देखेगा, ठीक है, यहाँ पर जो नाम है उसको देखेगा और यहाँ से पिकअप करेगा कि वो नाम यहाँ पर है या नहीं है, और अगर वो है तो यहाँ पर वो P लगा देगा. बट प्रॉब्लम इज़ उस VLOOKUP से वो क्योंकि पूरी की पूरी शीट में हर जगह फॉर्मूला लगा हुआ है, आपने एक जगह गलती से कुछ क्लिक गलत कर दिया तो दैट एंटायर फॉर्मूला एंड दैट एंटायर कैलकुलेशन विल गो फॉर अ टॉस. तो इसीलिए जैसे हम रजिस्टर में करते हैं वैसा कर सकते हैं. और बहुत इजी इसीलिए है क्योंकि ये भी अल्फ़ाबेटिकल आएगा आपके पास और ये भी अल्फ़ाबेटिकल आपके पास ये नाम है. तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं आए, ठीक है. ये आपके पास टोटल है कि 7 स्टूडेंट नहीं आए, तो 7 स्टूडेंट आप देख लीजिए कौन से नहीं आए, उनके आगे A लगा दीजिए, बाकी सबके आगे P लगा दीजिए. So it's just a matter of spending 5 minutes, but I think that this is much more comfortable as compared to जो हम register में probably जो करते हैं. That's my personal take, sir. Any other question? Hello. Yes, Anita ma'am. Sir, I wanted to ask, while taking a live class in Google Classroom, can we fix the time also? Ma'am, there is an option if you see. If you see here, हाँ, यहाँ पर टाइम मैंने मेंशन किया हुआ है 10:30 to 12:30. Okay, but in Google Classroom, through Google Meet, we can also set the time, right? Google Meet, I don't think, ma'am, I've done it, but if that's possible, I'm not sure. I don't think कि वहाँ पर ऑप्शन आता है, but I'll still check if there is an option there to control for. What happens when we have back-to-back classes? We often forget it's quite engaged in one class, and we often forget the time. So that this is the reason why I was asking whether we can fix the time. For example, in June class, it usually reminds us that your meeting is going to be end after 40 minutes. Okay. So that's why I was wondering whether this feature is available in Google Classroom if we are taking a live class through Google Class. Ma'am, I don't think that option is there. I will still check it. बट दैट इज़ वाई मैं कहता हूँ कि यू कैन यूज़ कैलेंडर, क्योंकि कैलेंडर में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा और कैलेंडर में यहाँ पर आप प्लगइन भी लगा सकते हैं उसका. फॉर एग्जांपल आप मेरा प्लगइन देखिए, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ प्लगइन में ऑप्शन आ गया कि मेरे पास कौन कौन सी क्लासेस कितने बजे हैं. तो जैसे मैंने आपको बाकी प्लगइन्स बताए थे वैसे ही आप गूगल कैलेंडर टाइप कर दीजिए गूगल क्रोम वेब स्टोर पे. तो जैसे आप करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आपका पूरे कैलेंडर के सारी की सारी क्लासेस आ जाएंगी. तो आपको बस एक क्लिक करना और आपको आइडिया लग जाएगा कि मेरी क्लास एंड हो रही है, कब हो रही है, कितने बजे तक है. तो दैट इज ऑल्सो इक्वली यूजफुल. I had a second question. In case if I am filling any information in my Google Classroom calendar, will it be visible to my students in case if I want to set a reminder for me but not for the student, and I am filling the information in Google Classroom calendar, so whether the student will be able to see that information? Which information, ma'am? I didn't get your question. Which information are you talking about? I'm talking about, you told us the difference between the Google class calendar and the normal Google calendar. So in case if I'm filling some information in my Google class calendar, will all the information will also be visible to the student who have joined in my Google Classroom? Ma'am, only that particular information will be visible. For example, I have kept a
test, an assignment for them. Let me show you. I've kept an assignment for them for 2nd of September. So if you see my Google classroom calendar के अंदर सिर्फ एक assignment आ रहा है. So only this is visible to them, and that only to that particular class. किसी और class को नहीं visible होगा. Okay, fine. Thank you so much. Mr. Rathore, I have a question. Yes, ma'am. In Zoom, we have the option to mute all, so that is very helpful in discipline in the class in case some kahin se background Yes, ma'am. noise aa rahi hai and all that. So do we have such feature in Meet? No, ma'am. That feature is not available. What you can do is, again, there is another plugin called Push to Talk. तो वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जैसे ही जो बंदा बोल रहा है उसको बोलने के लिए स्पेस बार दबाने की ज़रूरत है, एंड एज सुन एज यू रिलीज दी स्पेस बार वो बंदा अपने आप म्यूट हो जाएगा. सो देर इज़ एन ऑप्शन कॉल्ड, यहाँ पर इफ़ यू सी गूगल मीट पुश टू टॉक. तो बेसिकली उसमें क्या है कि किसी को बोलने के लिए आपको स्पेस बार दबाना पड़ेगा. तो यू कैन आस्क दी स्टूडेंट्स कि आप स्पेस बार दबा के बात कर लीजिए, और जैसे आपकी क्वेश्चन खत्म हो जाए आप स्पेस बार छोड़ दीजिए. So that option can be there, but again there is no option. Could you show it again? Please, I could not see the icon. This icon, ma'am. Google Meet Push to Talk. तो वही क्रोम स्टोर पे आके कर सकते हैं, बट अगेन स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं, वो यहीं से यहाँ पर नीचे जाके वो माइक ऑन करते हैं फिर भूल जाते हैं. बट अगेन जब आप ग्रिड यूज़ कर रहे होंगे, जैसे मैंने ग्रिड यूज़ किया तो मेरे पास सारे विजिबल हैं. जैसे आप बोलते हैं तो आपके नाम के आगे मेरे पास एक ग्रीन बॉक्स बन जाता है. तो आई नो कि किसका माइक ऑन है, तो मैं उसको इमीडिएटली टोक सकता हूँ कि माइक ऑन है, प्लीज़ बंद कर लीजिए. और अगर नहीं मानता तो यहाँ से रिमूव कर दो. All right. And now another question, and that is there an option to raise hand if students want to ask a question? Is there an option to raise hand in Google Meet? Yes, ma'am. That is also an option. यहाँ पर एक nod का option आ जाएगा आपके पास. These are all different plugins. मैं बहुत सारे plugins यूज़ करता हूँ. तो अगर आप यहाँ पर plugin देखिए तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को ये प्लगइन, बाय द वे ये स्टूडेंट्स को प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेरा प्लगइन है. तो सपोज़ मुझे रेज हैंड करना है तो यहाँ पर मेरे पास आ गया, जो जूम के अंदर रेज हैंड का ऑप्शन आता है वो यहाँ पर भी आ जाएगा. तो इसके लिए that is not inbuilt. That is not that is not an inbuilt option. The name of the plugin is Nod, NOD, reactions to Google Meet. All right. Thank you. Yes, ma'am. Any other question? Okay, my question is that whether they should be able to download these plugins on their mobile phone Google Chrome version. I haven't tried it, जय सर, बट आई विल ट्राई इट. मैं अपने मोबाइल को काफ़ी सिक्योर रखता हूँ, तो मैं अननेसेसरी प्लगइन्स नहीं करता, बट आई विल ट्राई इट. आई थिंक शुड वर्क. अगर मैं क्रोम को इंस्टॉल कर लेता हूँ और उस पर कर सकता हूँ, बट आई हैवंट ट्राइड इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. Because my question is that most of the students will join the class with their mobile phones. So if we advise them to download the plugin and then that create problems. मैं एक बार चेक कर लूँगा सर, हाउ टू इंस्टॉल दी प्लगइन्स इफ़ आई हैव अ क्रोम वेब स्टोर ऑन माई मोबाइल. उससे कैसे कर सकते हैं? आई डोंट वांट टू मिस इन्फॉर्म यू. आई वांट टू चेक इट थ्रू एंड देन ओनली आई कैन प्रॉब्ली रिवर्ट. Okay sir, thank you. Okay, first of all, I would like to clarify here that at the Campus Law Center level, we are not maintaining any data. So whatever data you have mentioned will goes directly to Delhi University central servers. And second thing is, I want to ask a question about recording. Yes, sir. So sometimes students want to record our lectures. Now it is the liberty of the teacher to allow that recording or not. So what is the option for that? Some teachers want that their lectures be recorded and some do not want it. So for that, sir, from the side of the Google Meet, what you can do is from admin console you can give an option that you can record the meeting. However, if you see here, I am not getting an option of recording here. But had I been the host of this meeting, I would have definitely got an option of recording this particular meeting. But that does not stop me from recording the meeting. I have third-party applications. So right now, this entire meeting is also getting recorded because I am using a third-party application to record the entire screen, as well as myself, as well as your voice. So if students want it, there are a number of ways out of it.
So that I don't think you can actually keep a check on. All right. Thank Okay. you. And so coming to the point of data, so a lot of teachers have come and told me that the data is not stored with us. That's, I mean, my only concern here is that how can we become more secure? I don't doubt my institution, but what I'm not sure is that suppose one day and the institution itself gets hacked. So for example, we have seen in the past Yahoo got bankrupt because of the fact that it leaked 400 million data points. So as long as we are secure, that's my entire argument here, and the measures that we can take to make us more secure. Any other question? All right. It seems you answered all the questions, Mr. Rathore. Yes, ma'am. So, is there anything else you want to share with all of us, or you want to mention something? Yes, ma'am. I would like to thank everyone for giving me this privilege. In fact, I've had a long history with CLC. My father is a pass out, and father and both my mother are pass outs of CLC of the 85 batch, and that is where they met. And in fact, I myself was a student at CLC in 2014. So I couldn't complete it because I had to give IS mains that year. So as a part of convention, almost all IS aspirants appear for law entrance. We're glad to invite you again. Sure, sir. I have promised my father I'll definitely do a law from CLC in my lifetime, especially because I have huge interest in law, and my research area is going to be application of AI in the field of law, and how to basically unclog the entire arteries of judicial delays. So that is my research area. So it's very exciting to be a part of this entire forum that we have. And I more than that, you have brought me out here to help you. I think in future I will seek more of your help in areas that I probably am a novice in. Okay, thank you so much, Siddharth, for such a wonderful presentation. So before we end this session, I would like to extend my vote of thanks to Mr. Siddharth Rathore, to our respected PIC sir, to Mr. JP Meena, and to Ms. Ruchita Chakraborty for all their help. Thank you all for participating. We hope that you have benefited from our discussions today. Thank you all, and that's all for today. Thank you, ma'am. Okay.